The Easterman's correction is used to address the above mentioned inaccuracies for assessment of the angle of A and B and was first described by Mills in 1982. The correction states that for every 1 degree that the angle SNA falls below the standard value of 81 degrees, half a degree should be added to A and B angle and vice versa. ठीक है. The correction is restricted for the cases where the SN maxillary plane angle is standard, that is 8 plus minus 3 degrees. ओके. नेक्स्ट आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट. ये इमेज दे रखी है, इसके आगे एक बेंडिंग वाला हिस्सा है एक, ठीक है. सो इट इज बेसिकली अ मैट्रिक्स बैंड कॉन्टूरिंग प्लायर. ठीक है. ये मैट्रिक्स बैंड को कॉन्टूर करने में हेल्प करता है, विच हेल्प्स टू क्रिएट मोर एनाटॉमिकली करेक्ट टूथ फॉर्म. ठीक है. नेक्स्ट आइडेंटिफाई द डिवाइस. आपको एक डिवाइस दे रखा है जो कि प्रोब की तरह है और उसके नीचे एक हैंडल है. ठीक है. सो इट इज अ मिडवेस्ट केरीज आईडी डिटेक्शन हैंडपीस. ठीक है. द मिडवेस्ट केरीज आईडी डिटेक्शन हैंडपीस यूजेस इंफ्रारेड एंड रेड लाइट. रेड लाइट भी इन द फॉर्म ऑफ एलईडी यूज करता है, एज वेल एज द फाइबर ऑप्टिक प्रोब टू डिस्ट्रीब्यूट लाइट to examine the areas. The Midwest carried ID detection handpiece then captures the resulting reflection and refraction from the enamel rods in the tooth. ठीक है. नेक्स्ट, which is this device? आपको डिवाइस की फोटो दे रखी है. ठीक है. इसको ध्यान से देख लो. एक रिट्रैक्शन हो रही है और ऊपर से उसके साथ एक सक्शन जुड़ी हुई है. ठीक है. इट इज बेसिकली अ नोला ड्राई फील्ड सिस्टम. नोला ड्राई फील्ड सिस्टम जो है, इट completely eliminates the saliva and fully exposes both the dental arches, making it ideal for bonding applications. This full arch dry field provides maximum access and saves the chair time. The system is easy to assemble and can be inserted by a single operator as well. Next आपको एक इंस्ट्रूमेंट दे रखा है. ठीक है. इसमें पूरा बंदे का मैक्सिला और मैंडिबल जो है उसको हम आर्टिकुलेट कर रहे हैं. ठीक है. So which is instrument is used for real-time recording of the visual locate references position and works on magnetic technology. It records the biomechanical movements of mandible. It is known as Denar Cardiacs. DENAR CADIAX. ये compact system है in the state of art of diagnostic tool that will help you to ensure function is component of your cosmetic dentistry. ठीक है. आप जब भी कॉस्मेटिकली पूरे दांत की रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं तो आप उसको फंक्शन को टोटली एक डायग्नोस्टिक टूल के हिसाब से मैच करवाने के लिए डेनार साइडेक्स कॉम्पैक्ट टूल जो है यूज़ करेंगे. द सिस्टम पर्सनलाइजेस डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन एंड articulator settings for each patient. The assembly and recording process takes less than 10 minutes. The functional disorders resulting from prosthetic treatment not in the harmony with the patient's oral function can be avoided. Next, what type of attachment system is shown in here? इसमें एक स्क्रू दे रखा है. ठीक है. स्क्रू है, उसके नीचे एक बोल्ट लगा हुआ है, गोल है बिल्कुल, बीच में एक हिस्सा बना हुआ है. What type of attachment system it is? It is basically Schubiger attachment system. Schubiger attachment system, it was given for the permanent form of fixation using the screw system that connects the anchor teeth to bar joint and bar unit. Anchor teeth को bar joint और bar unit के साथ connect करता है. It consists of a solder base with a screw, interchangeable with the Gerber post attachment. इसमें ceramic sleeve होती है, ceramic metal sleeve होती है, up to which a bar unit can be soldered. ठीक है. उसके बाद screw lock nut होता है to receive the sleeve. ठीक है. Next, what type of attachment system is shown here? एक और अटैचमेंट सिस्टम दिखा रखा है आपको जिसमें ऐसा है बिल्कुल. ठीक है. इट इज सीका अटैचमेंट सिस्टम. सीका अटैचमेंट सिस्टम कैन बी यूज्ड विद इन द अवेलेबल स्पेस टू गेन मैक्सिमम रिटेंशन एंड स्टेबिलिटी फॉर रिमूवेबल प्रोसेसेस. नेक्स्ट, ट्रू रिगार्डिंग swallowing is what? Swallowing is organized by a network of swallowing related neurons located in the medulla oblongata. The swallowing act of swallowing has voluntary and involuntary movements. 3 phases होते हैं इसमें, preparatory phase, oral phase और एक और phase होता है. Preparatory और oral phase होता है वो voluntary होता है, whereas the pharyngeal and esophageal phases they are mediated by involuntary reflex of the swallowing reflex. ठीक है. Next, not true about 3D printing is what? क्या क्या ट्रू है उससे पहले बात करते हैं. Precise study models can be made with the help of intraoral lab scanners. ठीक है. By 3D printing, easy to do CAD CAM. अगर एक बार CAD CAM सीख लिया तो it's easy to do. 3D printing is easy to do. Can be used in diagnosis and treatment planning in the restorative dentistry. ठीक है. CAD CAM. लेकिन इसमें हम बहुत तरह के मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं CAD CAM में. जो चौथा ऑप्शन है वो कह रहा है कि सिर्फ एक टाइप का मटेरियल आप यूज़ करोगे, तो दैट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल पल्पाइटिस एंड इरिवर्सिबल पल्पाइटिस टू चूज वेदर पल्पोटोमी और पल्पेक्टोमी हैज बीन डन.
तो इसमें आप यूज़ कर सकते हो सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्यों? क्योंकि सोडियम हाइपोक्लोराइड जो होता है वो इफेक्टिव हीमोस्टैटिक एजेंट होता है एज वेल एज डायग्नोस्टिक टूल होता है बिटवीन डिफरेंशिएटिंग ऑफ रिवर्सिबल पल्पाइटिस एंड इरिवर्सिबल पल्पाइटिस। अगर सोडियम हाइपोक्लोराइड के कॉटन पैलेट को हम रख रहे हैं, ठीक है, किसी भी हमारा जहाँ पे हमारा पल्प एक्सपोजर हो गया है, हमसे हुआ है इनएडवर्टेंटली, तो वहाँ पे अगर 10 मिनट के अंदर हमारी ब्लीडिंग स्टॉप कर जाती है, ठीक है, कॉटन पैलेट हटाया, ब्लीडिंग स्टॉप हो चुकी है, तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिवर्सिबल पल्पाइटिस। लेकिन इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में क्या होता है कि हाईली इरिवर्सिबली इन्फ्लेम्ड पल्प हो जाता है दैट नीड्स रिमूवल, ठीक है। हेंस द यूज ऑफ यूजिंग knowledge of using sodium hypochlorite is a diagnostic tool of importance for dental professionals. Next, in a cleft patient, what landmark cannot be marked on Ceph tracings? Cleft patient में क्या क्या चीज़ें मिसिंग हो सकती हैं? देखो, पॉइंट ए मिसिंग हो सकता है, PNS मिसिंग हो सकता है, ANS मिसिंग हो सकता है, posterior nasal spine, anterior nasal spine both could be missing क्योंकि cleft का पेशेंट है, ठीक है। तो इनमें हम पॉइंट ए मेजर नहीं कर सकते, PNS मेजर नहीं कर सकते, ANS मेजर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे क्लेफ्टिंग हो चुकी है इन द नेज़ोमैक्सिलरी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बर्ट एंड रोज, ऑल आर स्ट्रेच ऑफ होल पॉपुलेशन अप्रोच एक्सेप्ट व्हाट। देखो, होल पॉपुलेशन, आप पूरी पॉपुलेशन के बेसिस पे एक अप्रोच ले रहे हो, तो इट इज़ अ रेडिकल, इट इज़ पावरफुल अप्रोच, इट इज़ अप्रोप्रिएट अप्रोच, इट कुड बी अप्रोप्रिएट। मगर वो सारी पॉपुलेशन आपकी अप्रोच को एक्सेप्ट करे ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो एक्सेप्टेबिलिटी इज नॉट द स्ट्रेंथ ऑफ होल पॉपुलेशन अप्रोच, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कूपर्स टैक्सोनॉमी ऑफ नीड, अ नीड इज डिफाइंड एज अ स्टेट judged as a need by what? It is defined a need is defined as a state judged as a need by a health professional, ठीक है। कूपर्स टैक्सोनॉमी ऑफ नीड, इसमें वांट, डिमांड और नीड, तीन चीज़ों का ऑप्शन होता है हमारे पास। वांट मीन्स अ पर्सनस ओन एस्टिमेशन ऑफ वांटिंग फॉर हेल्प, a person's own estimation for wanting for help. Demand is the want of an individual that he is demanding a professional to meet, ठीक है। मतलब एक इंडिविजुअल किसी प्रोफेशनल के सामने अपनी कोई डिमांड रख रहा है कि मुझे ये करवाना है, दैट इज अ डिमांड। नीड, इट इज़ द स्टेट जज्ड एज ए नीड बाय हेल्थ प्रोफेशनल। आप अपनी डिमांड रख रहे हो, आप किसी हेल्थ प्रोफेशनल के पास गए हो, उसके बाद वो नीड को देखेगा कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, बेस्ड ऑन जो भी आपका टेस्ट उसने करवाया, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एनेस्थेटिक डिवाइस। एनेस्थेटिक डिवाइस देख लो, ये नीचे इसको डायरेक्ट बोन के अंदर घुसाया हुआ है, ठीक है। दिस इज द एनेस्थेटिक डिवाइस, इट इज द एक्स-टिप IO एनेस्थेटिक डिलीवरी सिस्टम। इट इज इंट्राऑशियस एनेस्थीसिया के लिए यूज किया जाता है। एक्स-टिप IO एनेस्थेटिक डिलीवरी सिस्टम डेंटिस्प्लाई इंटरनेशनल न्यूयॉर्क ने इसमें बनाया था, पेंसिल्वेनिया में। इट कंसिस्ट ऑफ एक्स-टिप दैट सेपरेट्स इनटू टू पार्ट्स, द ड्रिल एंड द गाइड स्लीव। एक ड्रिल होती है, एक गाइड स्लीव होती है, ठीक है। द ड्रिल इज हैविंग अ स्पेशल हॉलो needle leading to guide sleeve through the cortical plate and then it is separated from the guide sleeve and then it is withdrawn. जैसे हम एक कैथेटर लगाते हैं वैसे वैसे सिस्टम है इसका भी। द रिमेनिंग गाइड स्लीव इज डिजाइन टू एक्सेप्ट 27 गॉज नीडल। इस गाइड स्लीव में हम 27 गॉज की नीडल डाल सकते हैं। उसके बाद हम एनेस्थेटिक सॉल्यूशन को स्लोली ओवर द टाइम डिपॉजिट कर सकते हैं। द गाइड स्लीव इज रिमूव्ड आफ्टर द इंट्राऑशियस एनेस्थीसिया इज कंप्लीट। नेक्स्ट, नाइट्रोग्लिसरीन इज गिवन सबलिंगुअल बाय। नाइट्रोग्लिसरीन एक नॉन आयोनाइजेबल ड्रग है, ठीक है, और ये इजीली लिपिड सॉल्युबल होता है, इजीली ये सेल मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस जो है बहुत इजीली क्रॉस कर जाता है। इसकी वजह से जब इसको हम जीभ के नीचे रखते हैं तो ये डायरेक्टली अब्सॉर्ब हो जाता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, और इससे हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो कि लीवर से हो रहा है, जिससे कि लीवर आधे ड्रग को निकाल देता है बाहर, वो बाईपास हो जा रहा है। तो हमें ड्रग की डोज कम देनी पड़ रही है, प्लस ड्रग जो है वो ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो जाता है इनटू द ब्लड एंड इनटू द ऑर्गन जिसमें हमें वो चाहिए। तो इट वर्क्स इन द केसेस जहाँ पे हमें क्विक नीड चाहिए ड्रग की, क्विक फोर्स चाहिए ड्रग की, ठीक है, जैसे कि हमारे चेस्ट पेन हो गया, उसमें हम नाइट्रोग्लिसरीन को यूज़ करते हैं, एंजाइना के केसेस में करते हैं। नेक्स्ट, पल्पल एनेस्थीसिया यूजुअली अकर्स इन हाउ मेनी मिनट्स। पल्पल एनेस्थीसिया के लिए आपको मिनिमम 3 मिनट चाहिए, मैक्सिमम 7 मिनट चाहिए, ठीक है। इट विल अकर विद इन 3 to 5 मिनट्स, उसके अलावा कोई आंसर नहीं देना है, 3 to 5 मिनट्स। नेक्स्ट, द प्रॉक्सिमल वाइट स्पॉट लीजन, जब उसको हम 2 डायमेंशन में देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देगा, वो ट्रायंगुलर शेप का दिखाई देगा अगर हम 2 डायमेंशन जैसे कि एक्सरेज पे उसको देख रहे हैं तो। अब उसी प्रॉक्सिमल वाइट स्पॉट लीजन को अगर हम 3 डायमेंशन में चेक करेंगे तो कैसे दिखाई देगा, वो कॉनिकल दिखाई देगा,
ठीक है, अगर हम उसे CVCD में चेक करेंगे तो इट विल बी कॉनिकल. ओके, नेक्स्ट, ऑल आर ट्रू अबाउट विटॉल टेक्निक एक्सेप्ट व्हाट. विटॉल टेक्निक का मतलब क्या होता है? विटॉल टेक्निक इज राइटिंग इन द एयर यूजिंग लेग. ऐसी कंडीशन जहाँ पे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई या मस्कुलर रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो चुकी है या न्यूरोनल कोई दिक्कत हो चुकी है, ठीक है, वहाँ पे हम लेग्स को रेज करवा के लेग से लेटर लिखवाते हैं. जैसे लेग को रेज करवा के A बनवाएंगे पेशेंट से, B बनवाएंगे, C बनवाएंगे, ताकि उसके मसल्स और न्यूरोमस्कुलर सिस्टम का कोऑर्डिनेशन ज़्यादा बेटर हो सके, जिससे कि उसकी हीलिंग ज़्यादा जल्दी हो सके. ठीक है, दिस इज ट्रू अबाउट विटॉल्स टेक्निक. इट इज़ अ डिस्ट्रैक्शन मेथड. हम उसको मेन दिक्कत से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. नॉन फार्माकोलॉजिकल बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक है. नॉन फार्माकोलॉजिकल बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक है विटॉल मेथड. इट यूजेस राइटिंग इन एयर यूजिंग लेग. ठीक है, नेक्स्ट, राइबॉन्ड इज व्हाट? राइबॉन्ड इज पॉलीइथाइलिन फाइबर. राइबॉन्ड, it is best known as for making periodontal splints. Ribond splints are strong, highly bondable, and aesthetic. A ribond splint takes less time than traditional methods and is more aesthetic, less bulky, and exceptionally failure resistant. ठीक है, next, a K3 system of Nitai rotary files was introduced by who? K3 system of Nitai rotary files that was introduced by Dr. Max Padden. K3 system by Dr. Max Padden. ठीक है, अलग अलग सिस्टम थे हमारे पास. डॉक्टर स्टीव सेनिया एंड विलियम वाइडले, दे इंट्रोड्यूस लाइट स्पीड फाइल सिस्टम. स्टीव सेनिया एंड विलियम विलियम वाइल्डी और स्टीव सेनिया ने हमारा लाइट स्पीड फाइल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है, उसके बाद आया डॉक्टर स्टीव बुचानन. ही इंट्रोड्यूस्ड ग्रेटर टिप और GT फाइल सिस्टम. ग्रेटर टिप और GT फाइल सिस्टम स्टीव बुचानन ने किया. नेक्स्ट, डॉक्टर मैक्स पैडन, उन्होंने K3 फाइल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया. नेक्स्ट, डॉक्टर बेन जॉनसन इंट्रोड्यूस द प्रोफाइल सिस्टम. ठीक है, नेक्स्ट, ये आपको एक इमेज दे रखी है. इसमें बोला है कि ऑब्चुरेशन टेक्निक को बताओ कि कौन सी है. What is the obturation technique used by the above patient? It is warm vertical obturation. Calamus, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है कैलमस. Calamus, it is a recent technique of obturation of root canal system. It combines the calamus pack and the calamus flow. ठीक है, दो चीज़ें, कैलमस पैक और कैलमस फ्लो को हम पोजीशन करते हैं बाय साइड एंड साइड. हम पहले फ्लो को डालते हैं किसी भी रूट के अंदर जो हमने प्रिपेयर करके रखी है फॉर ऑब्चुरेशन. ठीक है, फिर उसके अंदर हम पैक डालते हैं, पैकिंग मटेरियल डालते हैं. Its handpiece has 360-degree activation cuff which provides a smooth continuous flow of gatta parcha. Calamus flow handpiece, it's used with one-piece gatta parcha cartridge and integrated cannula to dispense warm gatta parcha. ठीक है, the Calamus pack handpiece with EHP electrical heat plugger होता है उसके साथ, that is used to thermo soften the gatta parcha and to remove the and condense excess of gatta parcha. The EHP is available in 3 colors. 3 कलर्स में अवेलेबल होता है. ISO ब्लैक, ISO येलो एंड ISO ब्लू. ISO ब्लैक का दूसरा नाम होता है 40/03. ठीक है, ISO येलो का दूसरा नाम होता है 50/05. ये वर्किंग एंड और टेपर को रिप्रेजेंट कर रहा है. वर्किंग एंड डायमीटर जो है जब वो पहला वर्ड है, जैसे 50 इज द वर्किंग एंड डायमीटर एंड 05 इज द टेपर. ठीक है, और लास्ट में आता है 60/06, दैट इज फॉर ब्लू. 60/06 is for the blue. Next, identify the clamp that is shown in the picture below. देखो कितना लंबा क्लैंप है ना, कितना लंबा क्लैंप दिया हुआ है. तो कहाँ यूज हो सकता है ये? इट इज़ अ SG क्लैंप. ठीक है, SG दैट इज सिल्कर ग्लिकमैन क्लैंप. इंडिकेशन कहाँ पे? जहाँ पे सीवियरली ब्रोकन टूथ है, जो मेन टूथ है जिस पे हम काम करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा टूट चुका है. उसके आगे पीछे वाले दांत जो हैं उनको भी हम होल्ड में लेते हैं ताकि हम मेन टूथ को ट्रीट कर सकें. इट इज़ प्लेस टूथ on distal to the one that is being treated. जो मेन क्लैंप है, जो मेन क्लैंप की साइड है वो हम डिस्टल दांत पे डालते हैं. डिस्टल दांत पे डालेंगे मेन क्लैंप की साइड को, और ये आगे वाला हिस्सा जो होगा यहाँ पे हमारा मेन दांत होगा जहाँ पे हम ट्रीट कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डज क्यूमिक्स कंटेन? क्यूमिक्स के अंदर क्या चीज़ें होती है? क्यूमिक्स नया मेथड है हमारा, एक ट्रिपल एंटीबायोटिक पेस्ट जैसा ही चीज़ है. इसमें ट्राइक्लोसैन होता है, क्लोरहेक्सिडीन होता है, एंड अलॉन्ग विद दैट देयर इज EDTA. Qmix was introduced in 2011. It is one of the new combination products that is introduced for root canal irrigation, and it is recommended to be used at the end of instrumentation after sodium hypochlorite irrigation. कब यूज़ करते हैं इसको? After end of irrigation, and that is after sodium hypochlorite irrigation. ठीक है, Qmix contains chlorhexidine, triclosan. Triclosan का मतलब होता है ट्राई, 3.
3 एन आएंगे इस पे, दैट इज 3 हमारे पास मॉलिक्यूल होंगे ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड के, एंड EDTA एज डीकैल्सिफाइंग एजेंट, इसमें EDTA प्रेजेंट होता है एज डीकैल्सिफाइंग एजेंट. It is intended as antimicrobial irrigant as well as an agent to remove canal wall smear layers and debris. ये antimicrobial irrigant होता है और canal wall में smear layer और debris को remove करने के लिए यूज किया जाता है. प्रोटोकॉल क्या है कि Qmix is suggested as final rinse in the canal preparation. इसको final rinse की तरह भी यूज किया जाता है. Next, what is PUI? PUI का मतलब क्या होता है? इट इज अल्ट्रासोनिक इरिगेशन विदाउट इंस्ट्रूमेंटेशन. ठीक है, अल्ट्रासोनिक इरिगेशन विदाउट इंस्ट्रूमेंटेशन इज नोन एज PUI और पैसिव अल्ट्रासोनिक इरिगेशन. इट रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट यूज सिस्टम्स टू improve the endodontic irrigant activity. PUI acts by increasing the rate of action of sodium hypochlorite with an increase in the dentinal debris and smear level removal. There is a stronger shear stress and vapor lock reduction in PUI. Next, identify the system in the picture. ठीक है, ये हमारे पास एक सिस्टम दे रखा है. ये हमारे पास जो डायग्राम दे रखा है, इट इज बेसिकली अ सोनिक फ्रीक्वेंसी इरिगेशन सिस्टम फॉर द कैनाल प्रिपरेशन. ठीक है, एंडो एक्टिवेटर्स को बोलते हैं. दैट इज अ सोनिक फ्रीक्वेंसी सिस्टम दैट इज डेवलप्ड बाय डेंटिस्प्लाई टल्सा, डेंटल स्पेशलिटी टल्सा, जो भी है कंपनी का नाम. ठीक है, और ये बेसिकली अल्ट्रासोनिक सिस्टम है फॉर इरिगेशन. नेक्स्ट, व्हाट इज APDT? APDT का मतलब होता है एंटी माइक्रोबियल फोटोडायनेमिक थेरेपी, फोटो एक्टिवेशन डिसइंफेक्शन. ठीक है, इसका मतलब होता है फोटो एक्टिवेशन डिसइंफेक्शन और फोटोडायनेमिक थेरेपी, जिसमें कि लाइट एक्टिवेटेड थेरेपी से हम एंडोडोंटिक एप्लीकेशन लगाते हैं बिकॉज ऑफ इट्स एंटी माइक्रोबियल इफेक्टिवनेस. ठीक है, 2 स्टेप प्रोसीजर होता है जिसमें द इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोसेंसिटाइजर इज द स्टेप 1. फोटोसेंसिटाइज कर देते हैं हम इन्फेक्टेड टिश्यू को, उसके बाद लाइट इल्यूमिनेशन करते हैं एंड इरेडिएशन ऑफ द फोटोसेंसिटाइज टिश्यू हम करते हैं. ठीक है, which would generate a toxic photochemistry on the target cell leading to cell lysis. Each of these elements used independently will not have any action, but used together will have synergistic activity to produce the antibacterial action. ठीक है, next, the percentage of doxycycline in tetracycline is how much? Percentage of doxycycline in tetracycline is 50 mg per 5 ml. ठीक है, tetracycline is a combination product of MTAD. The two irrigants differ in concentration of antibiotics. Doxycycline is 150 mg per 5 mm for MTAD and 50 mg per 5 mm for tetracycline. ठीक है, the kind of detergent that is 2-in-80 for MTAD is given and propylene glycol for tetracycline is given. MTAD was introduced by Torabinjad and Johnson at Loma Linda University in 2003. It is an aqueous solution of 3% doxycycline and is a broad spectrum antibiotic. 4.25% citric acid is used as a demineralizing agent. 4.25% जो होता है citric acid वो demineralizing agent की तरह यूज की जाता है, and 0.5% polysorbate and 80 detergent that is 2-in-80 is also used. ठीक है, ये और परसेंटेज ऑफ डॉक्सीसाइक्लिन हमने बात करी, दैट इज 50 mg per 5 ml इज इन टेट्राक्लीन, और MTAD के अंदर है ये 150 mg per 5 ml. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है कि डॉक्सीसाइक्लिन का जो कंसंट्रेशन है MTAD के अंदर वो कितना है, वो 3% होता है. 3% कंसंट्रेशन इज प्रेजेंट इन MTAD. बायोप्योर MTAD एंड टेट्राक्लीन दो नए irrigant that are based upon the mixture of antibiotics. Citric acid and detergent have been developed. These irrigants are capable of removing the smear layer and organic tissue from the infected root canal system. MTAD introduced by Torabinjad and Johnson at Loma Linda University. यही बात मैं बात की अभी, वो एक एक्वस सोल्यूशन होता है 3% डॉक्सीसाइक्लिन का, जिसमें एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक डाला होता है, दैट इज 4.25% सिट्रिक एसिड. देखो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो है हमारा वो डॉक्सीसाइक्लिन है. सिट्रिक एसिड हमारे पास जो है वो डीमिनरलाइजिंग एजेंट है, और क्लेंजिंग एजेंट और डिटर्जेंट दैट इज 0.5% पॉलीसॉर्बेट 80. ठीक है, दैट इज ऑल्सो नोन एज 2-in-80. इट इज मिक्सड एज अ लिक्विड and powder prior to use. ठीक है, tetracline is used in combination product similar to MTAD and the two irrigants differ in the concentration of antibiotics. एक में हमारा डॉक्सीसाइक्लिन ज़्यादा है जो कि MTAD है, दैट इज़ 150 mg per 5 ml, और टेट्राक्लीन में हमारा डॉक्सीसाइक्लिन कम होता है, दैट इज़ 15 mg per 5 ml. And it's a kind of detergent that is 2-in-80 for MTAD, propylene glycol for tetracycline.
280 हम एमटैड के लिए यूज़ करते हैं डिटर्जेंट, और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल हम यूज़ करते हैं टेट्राक्लीन के लिए। नेक्स्ट, द ऑब्चुरेशन टेक्निक फॉर इंटरनल रिजॉर्प्शन विच वुड गिवन फेवरेबल रिजल्ट्स। ऑब्चुरेशन टेक्निक इंटरनल रिजॉर्प्शन के लिए अगर हम थर्मोप्लास्टिसाइज्ड गट्टा पर्चा यूज़ करते हैं तो इंटरनल रिजॉर्प्शन में इसका फेवरेबल रिजल्ट ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि इसका जब हम इसको कंडेंस करेंगे तो इसका ज़्यादा होमोजीनियस मास डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन द एरिया ऑफ इंटरनल रिजॉर्प्शन, और इसका बेटर कंट्रोल रहता है क्योंकि ये हमारा ईजिली सॉफ्टन हो जाता है, ठीक है, थर्मोप्लास्टिसाइड ऑब्चुरेशन। नेक्स्ट, बोन फिल इज विजिबल इन ऑसियस डिफेक्ट्स। बोन फिल इज विजिबल इन द ऑसियस डिफेक्ट आफ्टर पेरीरेडिकुलर सर्जरी एज अर्ली एज व्हाट टाइम। बोन फिल आपको ऑसियस डिफेक्ट की तरह दिखाई देता है एज 12 वीक्स, 12 हफ्ते तक लगभग वो डिफेक्ट कर दिखाई देगा। एनी बोन डिफेक्ट टेक्स अराउंड दिस मच टाइम फॉर बोन फिल। दिस मच टाइम इज रिक्वायर्ड, जो 12 हफ्ते है, 12 हफ्ते का टाइम, दैट इज 4 3 12, 3 महीने का टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द बोन ग्राफ्ट टू मैच्योर। Following the maturation of graft, the periradicular defect shows bone fill. Next, after traumatic injury resulting in fracture of the tooth root, there is a narrow radiolucent line between the fracture segments. The fracture segments are having the rounded margins. What does that indicate? अगर fracture segments की margins rounded है तो it indicates healing with interproximal connective tissue. ठीक है, it will indicate the healing with interproximal connective tissue. According to the Anderson and Hodgkin-Hansen root fracture can show healing in following ways: healing with calcified tissue in which the fracture fragments are in close contact, healing with interproximal connective tissue in which the radiographic fragments appear to be separated by a radiolucent line. जो फ्रैक्चर सेगमेंट है वो सेपरेटेड दिखाई देते हैं बाय अ रेडियोलुसेंट लाइन। हीलिंग विद इंटरप्रॉक्सिमल बोन एंड कनेक्टिव टिश्यूज, हियर द फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स आर सीन एज सेपरेटेड बाय डिस्टिंक्ट बोनी ब्रिज रेडियोग्राफिकली, ठीक है, जिसमें इंटरप्रॉक्सिमल बोन बन रही है और कनेक्टिव टिश्यू आ रहे हैं, वहाँ पे एक डिस्टिंक्ट बोनी ब्रिज दिखाई देता है। फिर इंटरप्रॉक्सिमल इन्फ्लामेटरी टिश्यू आता है विदाउट हीलिंग, रेडियोग्राफिकली इट शोज वाइडनिंग ऑफ द फ्रैक्चर लाइन, ठीक है। नेक्स्ट, अ डेंटिस्ट आफ्टर केयरफुली प्रिपेयरिंग द कैविटी प्रिपरेशन फाउंड एन एक्सीडेंटल एक्सपोजर ऑफ द पल्प कैविटी। एक्सीडेंटल एक्सपोजर हो गया पल्प कैविटी का। व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच ही विल कंसिडर? एक्सीडेंटल अप्रोच एक्सपोजर हुआ है तो अब हमें डायरेक्ट पल्प कैपिंग करनी है। वी विल अप्लाई यूजिनॉल टू सेडेट द पल्प, गिव एलए एंड एग्जामिन केयरफुली, ठीक है, एग्जामिन केयरफुली। अगर आपका हो चुका है, डायरेक्टली आपका एक्सपोजर हो चुका है तो यू विल गो फॉर डायरेक्ट पल्प कैपिंग, ठीक है, विद द ऐसा मटेरियल यूज़ करना है जिससे कि हमारी लीकेज, माइक्रो लीकेज बिल्कुल कम हो। MTA is the best. Next, which is the magnification used for root and amputation in endodontic procedures? Root and amputation के लिए आप 8x to 14x magnification यूज़ करते हो, ठीक है। मैग्निफिकेशन ऑफ 4 to 8 ओरिएंटेशन आप लो सर्जिकल ऑस्टियोटोमी वगैरह के लिए करते हो, रूट एंड प्रिपरेशन के लिए करते हो, सूचरिंग के लिए करते हो। मिड रेंज आता है 8x से लेकर 14x तक। ज़्यादातर सर्जिकल प्रोसीजर्स जैसे कि हीमोस्टैटिस हो गया, ग्रैनुलेशन टिश्यू रिमूवल हो गया, डिटेक्शन ऑफ रूट टिप्स हो गया, एपिकोएक्टोमी हो गया, रूट एंड प्रिपरेशन हो गया, रूट एंड फिलिंग हो गया, दीज आर डन बाय 8x to 14x। उसके बाद हाई एंड आता है 14 to 26, जिसमें इंस्पेक्शन ऑफ द रिसेक्टेड रूट सरफेस आता है एंड रूट एंड फिलिंग आता है, उसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड देयर इज ऑब्जर्वेशन ऑफ फाइन एनाटॉमिकल डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, उसमें हम हाई मैग्निफिकेशन दैट इज 14 to 26 जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, पिट एंड फिशर सीलेंट and its inability to prevent caries is due to what? Inability to prevent caries in pit and fissure sealant is due to inadequate moisture control. कोई भी अगर पिट एंड फिशर सीलेंट हम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी फिजिकल बैरियर होता है, वो इनहिबिट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फूड पार्टिकल एक्यूमुलेशन का इनटू द कैरीज साइड, arresting the caries. Moisture control is one of the most crucial aspects of the pit and fissure sealant placement, and therefore absolute isolation using a rubber dam is preferred. As a result of inadequate isolation, the enamel porosity is formed during etching can be filled by a fluid blocking the resin tags, decreasing the retention of the material. मतलब अगर हमारी isolation गई तो हमारा जो pit and fissure sealant है उसका काम भी चला जाता है। Next, pulpal anesthesia start to wear off from the anterior tooth after how many minutes? The disadvantage of the technique of the pulpal anesthesia कि उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन सिर्फ 30 से 60 मिनट तक ही रहता है, मतलब 30 से 60 मिनट के बीच में उसका ड्यूरेशन जो एक्शन है वो कम होना शुरू हो जाता है। द बल्क ऑफ द पल्पल टिश्यू मस्ट बी रिमूव्ड क्विकली
at the correct working length to prevent the recurrence of pain during instrumentation in the case of anterior teeth. ठीक है. Next, odds ratio was needed to be calculated in the below case. 24 cases out of 120 lung cancer cases have been having the exposure to asbestos, और 40 out of 1000 individuals without lung cancer has exposure of asbestos. इसमें आपने odds ratio लगानी है. What is the odds ratio for development of lung cancer on exposure to asbestos? देखो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला लगता है A divided by B divided by C divided by D. That is A multiplied by D, मतलब exposed into जो भी A D आप कर लोगे, ठीक है. A multiplied by D divided by B multiplied by C. ठीक है. तो इसमें हमारे पास odds ratio क्या आएगी? 24 केसेस जो थे आउट ऑफ 40 जो एक्सपोज हुए थे एस्बेस्टॉस को, उनको लंग कैसे डेवलप हुआ. तो 24 इंटू हम करेंगे कितने टोटल नंबर ऑफ केसेस थे जिनको लंग कैंसर था और जो एक्सपोज नहीं हुए थे एस्बेस्टॉस को, वो 960 थे. 24 इंटू 960 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 96. 40 को लंग कैंसर नहीं है, ठीक है, और ये एक्सपोज हुए थे एस्बेस्टॉस को, और जो नहीं एक्सपोज हुए थे एस्बेस्टॉस को वो 960 हैं टोटल, ठीक है, और 960 में से 96 को कैंसर है. तो 24 इंटू 960 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 96 दैट इज इक्वल टू 6 हमारी ऑड रेशियो आएगी. पीछे मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया होगा कि 960 को हमारा कैंसर हुआ है, बट दैट इज नॉट हैविंग कैंसर एंड नॉट हैविंग एक्सपोज टू द एस्बेस्टॉस. ठीक है. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डेंटल health component of IOTN, reverse overjet of more than 3.5 with no mastication or no speech difficulty will be classified as what? It will be classified as 4B according to dental health component of IOTN. 4B के अंदर क्लासीफाई किया जाएगा. नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन डिजीज कैन बेस्ट बी स्टडीड बाय व्हाट? जो भी आप जेनेटिक और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस देख रहे हो किसी भी डिजीज का, वो आप बेस्ट स्टडी कर सकते हो माइग्रेंट पॉपुलेशन के ऊपर. क्यों? क्योंकि लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर प्रोवाइड्स अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू इवैल्यूएट द रोल ऑफ पॉसिबल जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन अकरेंस ऑफ अ डिजीज पॉपुलेशन. माइग्रेंट स्टडीज की दो फेज में हम कंपैरिजन करते हैं. कंपैरिजन ऑफ द डिजीज एट द डेथ रेट ऑफ द माइग्रेंट्स विद दोज हु हैव किन टू हैव स्टेड एट देयर होम. मतलब जो लोग घर पे रह गए, अपनी कंट्री में रह गए, उनके कंपैरिजन में जो माइग्रेट करके गए उनमें डिजीज का क्या फैक्टर चेंज हुआ. दिस permits the study of genetically similar groups but living under different environmental conditions or exposures. If the disease and death rates in migrants are similar to country of adoption over a period of time, the likely explanation would change the environment. Comparison of migrants with local population of the country, host country, it provides information on genetically different groups of living people in a similar environment. If the migration rate of the disease and the death are similar to those of the country of origin, it is likely an explanation on the basis of genetic factor. ठीक है. Next, coffin appliance, it is used for what purpose? Coffin appliance जो होता है that is used for maxillary expansion. Coffin appliance आपके पास ऐसा होता है, ठीक है. दो आपके पास ऐसे एडम्स बने हुए होंगे, बीच में एक एक्राइलिक कंपोनेंट है, पीछे एक हमारे पास पीछे से हमने जोड़ के रखा हुआ और आगे से हम इसको एक्सपैंड कर रहे हैं. आगे से एक्सपैंड कर रहे हैं, पीछे से हमने एक स्प्रिंग मतलब एक वायर दे रखी है 19 गेज की, जो कि इसको जोड़ के रख रही है, यानी जिससे कि पीछे से एक्सपेंशन नहीं होगा और आगे से एक्सपेंशन होगा. दैट इज नोन एज वॉल्टर कॉफिन अप्लायंस. It is a removable appliance capable of slow alveolar expansion. The appliance consists of omega-shaped 1.25 mm thickness wire. It is placed in mid-palatal region. The free ends of the omega wire are embedded into the acrylic, covering the slopes of the palate. The spring is activated by pulling the two sides apart manually, and it can also be activated by using 3-prong pliers. Care must be taken to maintain the sides of the appliance in the same plane during adjustment. Ideally, the marking holes should be drilled on two wings, and the divider should be used to measure the amount of activation that is given. ठीक है. Next, for 1 mm of anterior tooth retraction, how much space is required in the arch? 1 mm अगर आपको टूथ को रिट्रैक्ट करना है तो आपको 2 mm का स्पेस जो है वो रिक्वायर्ड होता है इन द आर्च. नेक्स्ट, अपर्टोग्नैथिया रेफर्स टू व्हाट? अपर्टोग्नैथिया रेफर्स टू ओपन बाइट. ठीक है, मतलब इसी का दूसरा सिनोनिम है अपर्टोग्नैथिया. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग कोविड-19 इज फॉल्स?
देखो गलत चीज़ क्या है कि कोविड-19 ये कह रहा है कि स्वेट ऑफ द पेशेंट्स ऑफ कोविड-19 कैन ट्रांसमिट सार्स कोविड 2। स्वेट से ट्रांसमिट नहीं होता है, इट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय स्वेट, इट कैन ट्रांसमिटेड थ्रू सलाइवा, इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम ह्यूमन टू एनिमल ट्रांसमिशन, दैट कुड बी देयर, सलाइवा से हो सकता है, छींक से हो सकता है, एरोसोल से हो सकता है, इट इज़ इनकैप्सुलेटेड। ठीक है, ये तीनों हमारे सही स्टेटमेंट है। गलत स्टेटमेंट है कि स्वेट से ये ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, स्वेट से मतलब स्वेट से ट्रांसफ़र नहीं होगा, इन्होंने कहा है स्वेट से ट्रांसफ़र होगा, दैट्स द रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट, एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट शुड बी इनिशिएटेड एट हाउ मेनी डेज ऑफ केस ऑफ इन्फ्लामेटरी रूट रिजॉर्प्शन। अगर इन्फ्लामेटरी रूट रिजॉर्प्शन आपने डायग्नोस कर दिया तो आपको लगभग 7 दिन के अंदर ही उसको एंटोडोंटिकली स्टार्ट करना पड़ेगा। व्हेनेवर देयर इज एन एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड इन्फ्लामेटरी external root resorption, root canal treatment should be initiated as immediately as you detect the case. The canal should be medicated with calcium hydroxide. The calcium hydroxide should be placed for 3 weeks and replaced for 3 months until the radiolucencies of the resorptive lesion they disappear. Final obturation of the root canal can be performed when the bone repair is visible radiographically. According to Anderson et al., inflammatory root resorption is apparent histologically as early as 7 days after reimplantation of the teeth when the endodontic treatment is not performed because the entire ligament and the tooth socket are inflamed. कौन सा केस है जहाँ पे हम नहीं करते इमीडिएटली? जब एंटायर सॉकेट इन्फ्लेम्ड है और टूथ सॉकेट जो है वो और लिगामेंट उसके अराउंड पीडीएल जो है वो इन्फ्लेम्ड है, तब एकदम से नहीं करते, तब हम 7 के दिन देते हैं उसको। लेकिन अगर बाकी सारी चीज़ें सही हैं और एक्सटर्नल रूट रिजॉर्प्शन हो रही है, देन वी विल प्रोसीड एज अर्ली एज वी डिटेक्ट द केस। Next, which of the following represents the most common cause of pulmonary embolism? Thrombophlebitis. ठीक है, thrombophlebitis, it occurs due to the deep venous thrombi that detach and embolize to the pulmonary circulation. Pulmonary vascular occlusion occurs and impairs gas exchange and circulation. In lungs, the lower lobes are more frequently affected than the upper lobes. लोअर लोब जो है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म से ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड होते हैं दैन द अपर लोब्स। ठीक है, विद बायलेटरल लंग इन्वॉल्वमेंट दैट इज बीइंग कॉमन, लार्ज एम्बुलाई द वेज इन द पल्मोनरी आर्टरी वेल द स्मॉल एम्बुलाई ऑक्लूड इन द पेरिफेरल आर्टरीज। ठीक है, लार्ज पल्मोनरी आर्टरी में वेज कर जाते हैं और स्मॉल जो है वो हमारी पेरिफेरल आर्टरीज में वेज कर जाते हैं। ये थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के अंदर होता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के अंदर होता है। नेक्स्ट, which of the following is not an essential part of history taking form for COVID-19 in dental setting? देखो, हिस्ट्री टेकिंग में आप क्या कह लोगे? हिस्ट्री ऑफ सोर थ्रोट, हिस्ट्री ऑफ कफ, हिस्ट्री ऑफ फीवर यू विल टेक, हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज यू विल टेक, कॉन्टैक्ट विद COVID-19 पेशेंट इन द लास्ट 7 to 14 days यू विल टेक। ठीक है, आप जो हिस्ट्री नहीं लोगे दैट इज रिजाइडिंग इन द कंटामिनेटिंग जोन। कि आप अगर कंटामिनेटिंग जोन के अंदर है, किसी एरिया के अंदर जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रखे हैं, तो वो हिस्ट्री आप नहीं लेते। ठीक है, अंडरलाइंग डायबिटीज, मेलाइटिस एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज आर कंसिडर्ड एज अ रिस्क फैक्टर फॉर इंक्रीज कोरोना वायरस डिजीज दैट इज COVID-19 फॉर सीवियरिटी एंड वर्स आउटकम्स इंक्लूडिंग द हाई मोर्टेलिटी। अ पेशेंट विद एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, फीवर एंड एटलीस्ट साइन एंड सिम्टम ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज जैसे कि कफ हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी और हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल होगी ऑन रेजिडेंस in reporting to community transmission of COVID-19 disease during the 14 days prior to symptom of onset. ठीक है, बी, हमारे पास एक पेशेंट आया जिसको एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस है और ही और शी हैज़ बीन इन कॉन्टैक्ट विद द confirmed or probable case of COVID-19 patient in the last 14 days prior to the onset of symptom. तीसरा आया हमारे पास कि पेशेंट को सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस है, फीवर है और एटलीस्ट 1 साइन और सिम्टम है ऑफ द रेस्पिरेटरी डिजीज, जैसे कि कफ हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी और उसके साथ ही इज रिक्वायरिंग हॉस्पिटलाइजेशन एज वेल। एंड इन द एब्सेंस ऑफ एन ऑल्टरनेटिव डायग्नोसिस, अगर हमारे पास ऑल्टरनेटिव डायग्नोसिस नहीं है इन रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के लिए, तो हम COVID-19 उसको कह देंगे बिकॉज इट विल फुली एक्सप्लेन द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द पेशेंट, या फिर वो चेक हो जाएगा आगे जाके। नेक्स्ट, मसल प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल क्वाइट रेस्पिरेशन इज व्हाट? नॉर्मल क्वाइट रेस्पिरेशन कौन सा मसल रिस्पॉन्सिबल होता है? डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम जब ऊपर जाती है नीचे आती है तो दैट गिव्स यू अ नॉर्मल क्वाइट रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, टाइम बिटवीन डिजीज एक्सपोजर एंड डिजीज डिटेक्शन इज क्लिनिकली नोन एज व्हाट? आप एक्सपोज हुए किसी डिजीज के पैथोजन के साथ और आपकी डिजीज डिटेक्ट हुई, उन दोनों टाइम के बीच में जो टाइम पीरियड होता है व्हाट इज नोन एज? इट इज नोन एज इंक्यूबेशन टाइम पीरियड।
व्हाट इज इट नोन एज? इंक्यूबेशन टाइम पीरियड। देखो, इंक्यूबेशन टाइम पीरियड के बाद आपकी डिजीज़ जो होती है वो आपके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब जो लेटेंट पीरियड होता है वो इंक्यूबेशन टाइम पीरियड से पहले होता है, ठीक है। लेटेंट पीरियड तब होगा जब आप इन्फेक्ट तो हुए हो लेकिन आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे डिजीज़ को, आप फैला नहीं रहे हो डिजीज़ को, ठीक है। आपके अंदर डिजीज़ जाके लेटेंट बैठी हुई है, शांत बैठी हुई है आपके अंदर डिजीज़, पैथोजन शांत बैठा हुआ है, अभी वो फैल नहीं रहा है आपके बॉडी के थ्रू। फिर इस इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर ही लेटेंट पीरियड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। और ये जो होता है वो डिजीज़ और जो आपका इंक्यूबेशन पीरियड होता है उसके बीच में एक इनडेफिनेट लाइन के बीच में होता है ये सब, ठीक है। लेटेंट पीरियड आएगा, उसके बाद आएगी पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी तब तक रहेगी जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, जब तक आप डिजीज़ को शेड कर रहे हैं, दैट इज़ द पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी ऑफ द डिजीज़, ठीक है। नेक्स्ट, टैनरेलिया फॉर्सिन्थिया इज व्हाट? टैनरेलिया फॉर्सिन्थिया, इट इज अ ग्राम नेगेटिव ऑब्लिगेट एनारोब। Tenerilia forsythia, it is an anaerobic gram-negative bacterial species of Cytophaga bacteroidetes family. It has been implicated in periodontal diseases and is a member of red complex of periodontal pathogens. It's a member of red complex of periodontal pathogens. T. forsythia, it was previously named Bacteroides forsythis and Tenerella forsythis. ठीक है, ये इसका पुराना नाम था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट फेशियल इंडेक्स? फेशियल इंडेक्स के लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? फेशियल इंडेक्स इज मेजर्ड फ्रॉम नेजियन टू नाथियन, दैट इज बायजाइगोमेटिक विड्थ हम लेते हैं, दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। बायजाइगोमेटिक विड्थ हम लेते हैं, दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू फेशियल इंडेक्स। नेक्स्ट, एवरेज वैल्यू ऑफ द फेशियल इंडेक्स इज 85.0 टू 85.9। एवरेज वैल्यू जो फेशियल इंडेक्स की होती है वो 85.0 से 85.9 के बीच में आकर करती है। ये दो स्टेटमेंट थी जो हमारी सही थी इसके अंदर, ओके। See, the shape of the face is assessed by morphological facial index that was given by Martin and Staller in 1957. Morphological facial height is the distance between nasion and nathion. Morphological facial height nasion और nathion के बीच में होता है, and bizygomatic distance between the two zygoma points. Hyperuperoscopic का मतलब होता है low facial skeleton that is having -78.9 अपनी वैल्यू। यूप्रोस्कोपिक में 79 से 83 तक वैल्यू जाती है। मीजोप्रोस्कोपिक में एवरेज फेशियल स्केलेटन होता है, दैट इज 84.0 टू 87.9। उसके बाद लेप्टोप्रोस्कोपिक आता है, दैट इंक्लूड्स हाई फेशियल स्केलेटन, दैट इज 88.0 टू 92.9। फिर उसके बाद आता है हाइपर लेप्टोप्रोस्कोपिक, दैट इज 93.0, उसकी वैल्यू आ जाती है। द टाइप ऑफ फेशियल मॉर्फोलॉजी हैज सर्टेन रिलेशनशिप टू द शेप ऑफ द डेंटल आर्च। Example, euproscopic facial types have broad square arches. Broad line crowding in such cases should be treated by expansion. On the other hand, leptoproscopic faces often have narrow apical basal arches. Therefore, extraction is the preferred over expansion. ऐसी आर्च जहाँ पे आपका वाइड आपका फेस है वहाँ पे आप एक्सपैंड कर सकते हो आर्च को, लेकिन अगर आपका नैरो फेस है तो आपको जो स्पेस बनाना है उसमें आपको एक्सट्रैक्शन करना पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, मायोफंक्शनल अप्लायंसेज वर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स? मायोफंक्शनल अप्लायंसेज दो प्रिंसिपल से काम करते हैं मेनली, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड एलिमिनेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। दो काम, पहली तो फोर्स एप्लीकेशन होती है जिसमें कंप्रेसिव फोर्सेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस एक्ट करता है सर्टेन स्ट्रक्चर्स के ऊपर दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द रिजल्ट of primary alteration in form of secondary adaptation of function. Most of the fixed and removal functional appliance work on this principle. Force application के principle पे काम करते हैं। Force elimination दूसरा principle होता है। The principle involves the elimination of abnormal and restrictive environmental influences on the dentition and thereby allowing the optimal development. Thus, the function is rehabilitated with a secondary change in form. ठीक है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल डायग्नोस्टिक सेल इन लैंगरहैंस सेल हिस्टियोसाइटोसिस इज व्हाट? डायग्नोस्टिक सेल इन लैंगरहैंस सेल हिस्टियोसाइटोसिस, उसमें बर्बैक ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है। बर्बैक ग्रैन्यूल्स होते हैं लेकिन हिस्टियोसाइट्स भी, एक और क्वेश्चन था जिस पीछे से हमने किया था उसमें हिस्टियोसाइट आंसर था। यूनिक फीचर ऑफ लैंगरहैंस सेल revealed the cytoplasmic immunostaining with S100 antigen distinguishes them from other histiocytes. The presence of HX bodies or the Burbeck's granules that are rod-shaped characteristic periodicity and sometimes a dilated terminal and called as tennis racket appearance वो दिखाई देती है। Intracellular in location, they are identified by electron microscopy and the presence of CD
1A antigen on the cell surface, and HLA-DR positivity confirms the Langerhans cell origin of the disease. Next, which of the following presents as a multifocal white lesion and has inexorable progression to oral squamous cell carcinoma? Inexorable progression to oral squamous cell carcinoma is PVL, that is proliferative verrucous leukoplakia. What is a form of verrucous leukoplakia and was first described by Hansen et al. In 1985 and was characterized by multifocal presentation, and it has a strong potential for malignant transformation and is resistant to treatment. Okay. Next, which of the following uses intraoral anchorage? Nance palatal arch जो है वो intraoral anchorage को यूज करता है. The all other three options are located outside the oral cavity. Face mask, headgear, chin cap, chin cup हमारे तीन बाकी ऑप्शन हैं जो कि आउटसाइड द ओरल कैविटी होते हैं, जैसे कि ऑसिपुट हो गया, बैक ऑफ नेक हो गया, और किनेमो फेस पे वो उन्होंने लगाया जाता है. सिर्फ नैंस पेटलेटल आर्च ही है जो इंट्रा ओरल एंकरेज को यूज करता है. नेक्स्ट, वेन डायग्राम में आउटर मोस्ट एनवलप क्या रिप्रेजेंट करता है? इन वेन डायग्राम द आउटर मोस्ट एनवलप रिप्रेजेंट्स इंट्रा आर्च अलाइनमेंट. क्या रिप्रेजेंट करता है? इंट्रा आर्च अलाइनमेंट. द सिस्टम प्रपोज्ड बाय एकरमैन प्रॉफिट इज बेस्ड अपॉन द सेट थ्योरी वेयर अ सेट इज डिफाइंड एज द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल डेविएशंस फ्रॉम द आइडियल. The classification was illustrated using the Venn diagram logic diagram. The classification considered 5 characteristics and their interrelationships were assessed. The first or the outermost is the characteristic alignment. The intra-arch alignment and the symmetry are assessed when they are seen in occlusal view. The dental arch is classified as ideal, crowded or spaced on the basis of this characteristic alignment. Okay? Next. Match the analysis given in the column A with their respective planes in the column B. जो डाउन्स एनालिसिस होता है वो गॉनियन टू मेंटॉन चलता है. डाउन्स एनालिसिस इज फ्रॉम गॉनियन टू मेंटॉन. स्टीनर्स एनालिसिस चलता है गॉनियन से ग्नाथियन. डाउन्स फ्रॉम गॉनियन टू मेंटॉन, स्टीनर्स फ्रॉम गॉनियन टू ग्नाथियन. एंड ट्वीट्स एनालिसिस, तीसरा एनालिसिस होता है ट्वीट्स एनालिसिस, वो टेंजेंट टू द लोअर पार्ट ऑफ द मैंडिबल. टेंजेंट टू द लोअर पार्ट ऑफ द मैंडिबल इट विल गो the Tweets analysis. Okay. Next, what is the purpose of Glasgow Coma Scale? Glasgow Coma Scale से you level or you determine the level of consciousness of a person. Okay. The Glasgow Coma Scale, that is GCS, it is a tool that healthcare providers use to measure the person's level of consciousness. It is most oftenly used when a person has traumatic brain injury. ठीक है, या फिर ट्रॉमेटिक आपकी दिमाग में कोई इंजरी हुई है, या सर्वाइकल कॉर्ड में कोई इंजरी हुई है, तब इसको यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फीचर्स और फैक्टर्स कॉज कीटोएसिडोसिस एक्सेप्ट व्हाट? कीटोएसिडोसिस कहाँ पे देखा जाएगा? स्टार्वेशन में देखा जाएगा, डायबिटीज़ में देखा जाएगा. आप अगर हाई फैट डाइट ले रहे हो और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहे हो, जब आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कम है, ठीक है, काम करने के लिए जो एनर्जी सोर्स है वो कम है, तब आपका कीटोएसिडोसिस देखा जाता है. ठीक है, लो फैट हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट में आपका कीटोएसिडोसिस नहीं देखा जाएगा. ठीक है, इट विल बी नॉर्मल. जब कार्बोहाइड्रेट नॉर्मल है तो कीटोएसिडोसिस नहीं देखा जाता है. हाई फैट लो कार्बोहाइड्रेट डाइट विच इज ऑल्सो नोन एज कीटो डाइट along with diabetes mellitus, it leads to diabetic ketoacidosis. Starvation ketoacidosis occurs after the body is deprived of glucose as its main primary source of energy for a prolonged time, causing the fatty acids to replace the glucose as a major metabolic fuel. मतलब जो फैटी एसिड्स आपकी बॉडी के अंदर फ्यूल की तरह यूज किए जाएंगे, तब आपकी कीटोन बॉडीज बनती हैं, एंड दैट लीड्स टू कीटोएसिडोसिस in the body. Next, parasympathetic activity is inhibited by blocking which receptor? Parasympathetic activity वो मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके अपना काम करता है. ठीक है, मतलब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को हम डिक्रीज मस्कुरेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करके कर सकते हैं. ठीक है, मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन पेरिस्टालिसिस, मिक्चुरेशन, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन एंड अदर पैरासिम्पैथेटिक रिएक्शंस. So by blocking the muscarinic receptor, we can block the parasympathetic activity of the body. Next, match the following vaccines in column A with their respective answer in column B. ठीक है, measles vaccine. measles आपके साथ, measles is a live vaccine. ठीक है, measles is a live vaccine. और उसके बाद आता है hepatitis B. hepatitis B is a recombinant vaccine. measles is a live vaccine, hepatitis B is a recombinant vaccine. Injectable polio vaccine is the killed vaccine. Injectable
पोलियो वैक्सीन, इट इज़ अ किल्ड वैक्सीन, ठीक है। लास्ट में वी हैव डिप्थीरिया। डिप्थीरिया इज अ डिप्थेरिक टॉक्सॉइड वैक्सीन, ठीक है। डिप्थीरिया एक टॉक्सॉइड वैक्सीन होते हैं। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स दे आर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हेपेटाइटिस ए, फ्लू शॉट्स, पोलियो शॉट्स, रेबीज। रेबीज में लाइव वैक्सीन्स आर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट रेबीज, ठीक है। फिर उसके बाद आता है MMR, दैट इज मीजल्स मम्प रुबेला कंबाइंड वैक्सीन। फिर रोटा वायरस वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, चिकन पॉक्स वैक्सीन, येलो फीवर वैक्सीन, mRNA वैक्सीन दैट आर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट COVID-19 सब यूनिट, ठीक है। फिर HIV वैक्सीन होती है, दैट इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B वैक्सीन होती है। फिर हेपेटाइटिस B, फिर HPV वैक्सीन होती है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। वूपिंग कफ के लिए वैक्सीन होती है, दैट इज नोन एज DTAP कंबाइंड वैक्सीन, DTAP कंबाइंड वैक्सीन, दैट इज वूपिंग कफ वैक्सीन। फिर न्यूमोकोकल डिजीज आती है, फिर आती है मेनिंजोकोकल डिजीज, फिर शिंगल्स। फिर टॉक्सॉइड वैक्सीन आर यूज अगेंस्ट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिप्थीरिया, टिटनस एंड वायरल वेक्टर्स वैक्सीन्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट COVID-19. Okay. Next, pheochromocytoma is the tumor of what? Pheochromocytoma, it's the tumor of adrenal medulla. Pheochromocytoma जो है वो ट्यूमर होता है जो कि एंटीरियर पार्ट ऑफ एड्रीनल मेडुला के अंदर दिखाई देता है, इन द इनर पार्ट ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड. द एड्रीनल मेडुला मेक्स द हार्मोन्स दैट इज एड्रेनलिन, epinephrine and non-adrenaline, non-epinephrine. If a tumor in this area forms, it can cause too much of these hormones to produce. ठीक है. This can be dangerous because it can cause a high pressure जो कि आप मेंटेन नहीं कर पाओगे कुछ भी करके जब तक आप ट्यूमर को रिमूव नहीं कर देते. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ statement is true about type 1 hypersensitivity reaction? Type 1 hypersensitivity reaction, it is also known as immediate reaction involving IgE mediated release. IgE, allergy वाला जो है, that is type 1. That are the antibodies against the soluble antigen. This result in mast cell degranulation and release of histamine and other inflammatory mediators into the body. Only the activation of mast cells, not neutrophils, occur in type 1 hypersensitivity reaction. Next, which organelle is bound by a membrane, contains digestive enzymes, and formed by fusion of transport vesicles budding from the Golgi complex? Lysosomes. Answer is lysosomes are the membrane-bound organelles containing digestive enzymes formed by fusion of transport vesicles budding from the Golgi complex. They break down excess or worn out cell parts. They may be used to treat or to destroy bacteria invading viruses and bacteria. मतलब जो भी microbes हमारे अंदर present है उनको break down करने के लिए हम इसको use कर सकते हैं. Next, deficiency of which of the following vitamin can lead to accumulation of methyl tetrahydrofolate and leads to deficiency of folic acid? अगर हमारा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट उसकी हमारी एक्यूमुलेशन हो जाती है और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है. ठीक है. दैट रिजल्ट्स फाइनली इन इंटरफेयरिंग ऑफ द सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स एंड DNA. Therefore reduces the cell proliferation. क्या करेगा फाइनली? It will reduce the cell proliferation in the body. Next, which of the following vitamin deficiencies play a role in maturation of collagen? अगर हमारे को स्कर्वी हो रखी है, मतलब विटामिन C की डेफिशिएंसी है, तो उसमें कोलेजन या जो दैट इज कॉज्ड बाय एस्कॉर्बिक एसिड, तो कोलेजन की जो फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाती है, वो डिरेंज कर जाती है बॉडी के अंदर. ठीक है. सो बोन फॉर्मेशन इज ऑल्सो अफेक्टेड, टीथ बिकम्स लूज, बोन ब्रेक इजिली एंड डिफेक्टिव कोलेजन दैट इज फाइब्रिलोजेनेसिस इम्पेयर्स द वुंड हीलिंग. ठीक है. नेक्स्ट, एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन इज व्हाट? एल्डोस्टेरॉन का काम है सोडियम एंड वाटर रिटेंशन. एल्डोस्टेरॉन का एक ही काम है, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन इन द बॉडी. ठीक है. एल्डोस्टेरॉन इज वन ऑफ द मेजर mineralocorticoid steroid hormones that are produced by the zona glomerulosa of the adrenal cortex in the adrenal gland. It is essential for sodium conservation in the kidney, salivary glands, sweat glands and colon. ठीक है. सोडियम कंजर्वेशन हो जाती है किडनी, salivary glands, sweat glands और colon में. ये mineralocorticoid aldosterone, it plays a homeostatic regulation of blood pressure, plasma sodium levels and potassium levels in the body. ठीक है. Sensation not relayed in thalamus is what? थैलेमस में कौन कौन सी सेंसेशन आपके पास आती है? हियरिंग आएगी, टेस्ट आएगी, विजन आएगी.
हियरिंग आएगा, टेस्ट आएगा और विजन आएगा, तीन चीज़ें आएंगी, हियरिंग, टेस्ट एंड विजन. बट स्मेल इज नॉट रिलेड इन द थैलेमस. Our sense of smell is directly connected to our limbic system, the most ancient and primitive part of the brain, which is thought to be a seat of emotion. Smell sensations are relayed to the cortex, where the cognitive recognition occurs only after the deepest parts of our brain have been stimulated. Next, number of vertebrae present in the vertebral column in adults is how much? कितनी vertebral bodies आपकी vertebral column के अंदर present होती हैं? The answer is 24. ठीक है. द स्पाइन इज मेड अप ऑफ 33 वर्टिब्रे, मोर देन 13 मिलियन न्यूरॉन्स, 24 to 26 वर्टिब्रे आर देयर बिकॉज सम वर्टिब्रे फ्यूज टुगेदर एज वी एज. 220 लिगामेंट होते हैं. 7 वर्टिब्रे होते हैं इन द नेक ऑफ ह्यूमन्स एंड जिराफ. हमारे गले में और जिराफ के गले में बराबर वर्टिब्रे होते हैं, 7 वर्टिब्रेज. द स्पाइन हैज़ ओवर 120 मसल्स, 120 मसल्स होते हैं, 220 लिगामेंट होते हैं. There are 5 spinal cord regions, 7 cervical, 12 thoracic. 7 cervical, 12 thoracic. ठीक है. 5 lumbar और 4 coccyx. ठीक है. 5 lumbar that are fused vertebrae. lumbar sacrum जो होते हैं fused vertebrae होते हैं और coccyx भी fused vertebrae होती है जो 4 होते हैं. Spine में लगभग 100 joints होते हैं. 4 coccyx vertebrae fused together to form a tailbone. Coccyx fuse करती है to form a tailbone. The average weight of the spinal cord is 35 grams. The spine has 3 important functions. क्या क्या important function हो सकते हैं spine के? First is the movement of trunk. ठीक है, spine क्या करवाएगी? Movement of trunk करवाएगी. Second is support for the body and respiratory function. Third is to protect the spinal cord and nerve structures. ये तीनों जो है spine के important function होते हैं. Next is primary motion of the spine. मोशन ऑफ द स्पाइन में आपका फ्लेक्शन आ सकता है, दैट इज फॉरवर्ड मोशन. एक्सटेंशन आता है बैकवर्ड मोशन. बेंडिंग लेफ्ट और राइट, ये भी मोशन ऑफ स्पाइन होता है. रोटेशनल एक्सिस, दिस इज ऑल्सो अ सेंट्रल एक्सिस ऑफ द स्पाइन. नेक्स्ट, द स्पाइन इज मेड ऑफ 33 वर्टिब्रे. एडल्ट्स हैव ओनली 26 वर्टिब्रे बिकॉज द बोन्स फ्यूज टुगेदर विद एज. लेकिन हमारा यहाँ पे आंसर जो है वो 24 दे रखा है. 24, 26 दोनों आंसर जो है वो दे आर कॉमनली ट्रू. ओके, नेक्स्ट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैरीड इन द ब्लड एज व्हाट? ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में प्लाज्मा के अंदर कैरी की जाती है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स, इन द फॉर्म ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट. नेक्स्ट, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर इज मेनली ड्यू टू व्हाट? माइलिनेटेड नर्व फाइबर के अंदर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पोटेशियम की वजह से होता है. इट इज़ ड्यू टू पोटेशियम. नेक्स्ट, लंग वॉल्यूम विच इज़ नॉट मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर इज व्हाट? जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी रह जाती है, मतलब जो आपका लंग के अंदर रह जा रहा है वॉल्यूम, वो स्पायरोमीटर से आप मेजर नहीं कर सकते. ठीक है. फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, दैट्स द वॉल्यूम ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द एंड ऑफ पैसिव रेस्पिरेशन और पैसिव एक्सपिरेशन, उसको आप मेजर नहीं कर सकते. नेक्स्ट, मैच द मोमेंट टू कपल रेशियो ऑफ कॉलम ए विद द कॉलम बी. ठीक है. मोमेंट टू कपल रेशियो जो है अगर हमारी 0 है तो व्हाट काइंड ऑफ मोमेंट इट इज? इट इज़ अ प्योर टिपिंग फोर्स. ठीक है. MC डिवाइडेड बाई MF, कपल डिवाइडेड बाई जो फोर्स है उसकी रेशियो अगर 0 है देन दैट इज प्योर टिपिंग फोर्स. ठीक है. इट इज़ अ प्योरली टिपिंग फोर्स. अगर कपल टू फोर्स रेशियो 1 है तो इट इज़ बॉडीली मूवमेंट. कपल टू फोर्स रेशियो 1 है तो इट इज़ अ बॉडीली मूवमेंट. अगर कपल टू फोर्स रेशियो इज ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा है कपल टू फोर्स रेशियो, तो वो टॉर्क जनरेट कर देगा. कपल टू फोर्स रेशियो इज ग्रेटर देन 1, इट विल जनरेट टॉर्क. मतलब फोर्स कम है और कपल ज़्यादा है तो टॉर्क घूम जाएगी चीज़. ठीक है. इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन जो कपल टू फोर्स रेशियो है दैट इज़ ग्रेटर देन 0 बट लेस देन दैट ऑफ 1. ठीक है. इट विल लीड टू कंट्रोल टिपिंग फोर्सेस. अगर वो ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 1 है, मतलब 0 से 1 के बीच में है, तो इट विल लीड टू कंट्रोल्ड टिपिंग फोर्सेस. ठीक है. नेक्स्ट, डाइफेनहाइड्रामीन इज गिवन इन इमरजेंसी एज व्हाट? डाइफेनहाइड्रामीन को एक एंटी हिस्टामीन की तरह दिया जाता है इन द केस ऑफ इमरजेंसी. ओके, किसकी तरह? एंटी हिस्टामीन की तरह. जैसे कि स्नीजिंग हो गया, रनिंग नोज हो गया, वाटरी आइज हो गया, हाइव्स हो गई, स्किन रैश हो गया, इचिंग हो गई, and other cold or allergy symptoms. Diphenhydramine is also used to treat the motion sickness, to induce sleep and to treat certain symptoms of Parkinson disease. ठीक है. Next, anterior middle superior alveolar block, that is AMSA nerve block. It is used or effective in anesthetizing what?
एंटीरियर मिडिल सुपीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक जो होता है वो मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर, मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर, मैक्सिलरी कैनाइन, फर्स्ट प्रीमोलर सेकंड प्रीमोलर तक सभी को एनेस्थाइज करने की ताकत रखता है. ऑल द मैक्सिलरी टीथ आर प्रेजेंट up till second premolars get anesthetized during second premolar anesthesia, that is AMSA anesthesia. Next, pick out the incorrect statement regarding Gary's osteomyelitis. Correct statement के बारे में बात करते हैं. Gary's osteomyelitis आपकी यंगर एज में आकर करती है. It occurs in immunocompromised individuals. Staphylococcus major role play करता है in Gary's osteomyelitis. ठीक है. गलत स्टेटमेंट क्या है कि ये मैक्सिला को ज़्यादा अफेक्ट करता है, ये बोल रहा है, बट इट डज नॉट happen like that. The difference in the blood supply between the mandible and the maxilla is the main reason for change of Gary's osteomyelitis. For किसी बोन के लिए ज़्यादा अफेक्ट क्या कर रहा है, तो वहाँ पे वो मेजरली अफेक्ट करेगा मैंडिबल रादर देन मैक्सिला. ठीक है. The maxilla has better blood supply and has thin cortical bone plates and has less medullary space as compared to mandible. The mandible is more affected than maxilla as it is most generally seen at the lower margin of the mandible in the mandibular first molar region. ठीक है. Gary's osteomyelitis सबसे ज़्यादा mandible में दिखाई देता है in the mandibular first molar region. Radiological findings में as seen on the plain film radiographs, the radiolucency is surrounded by radio-opaque areas, loss of trabecular pattern, moth-eaten appearance दिखाई देती है Gary's osteomyelitis के अंदर. ठीक है. And shortening of the tooth roots is also seen. Features directly linked to osteomyelitis are periosteal bone formation and sequestra formation. ठीक है. Next, all of the following regarding the eccentric relation records are true except what? Eccentric relation records में क्या क्या चीज़ें देखनी होती है आपने? The condylar path of the patient cannot be altered. कॉन्डाइलर पार्ट को हम ऑल्टर नहीं कर सकते, ये पहली चीज़ होती है. द कॉन्डाइल्स डू नॉट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन ड्यूरिंग द एक्सेंट्रिक मैंडिबुलर जॉ मूवमेंट. कॉन्डाइल स्ट्रेट लाइन में कभी ट्रैवल नहीं करता. ठीक है. जब भी हम कॉन्डाइल को एक्सेंट्रिक मैंडिबुलर जॉ मूवमेंट कराते हैं वो एक कर्व में ट्रैवल करेगा. नेक्स्ट, सेमी एडजस्टेबल आर्टिकुलेटर्स इन विच द कॉन्डाइल ट्रैवल्स ऑन अ फ्लैट पाथ कैनॉट बी यूज टू रिप्रोड्यूस द एक्सेंट्रिक मूवमेंट्स एग्जैक्टली एज दे आर अकरिंग. ठीक है. सेमी एडजस्टेबल आर्टिकुलेटर्स में आप नहीं कर पाओगे इसे. नेक्स्ट, फुली एडजस्टेबल आर्टिकुलेटर्स वेयर द कॉन्डाइलर एंड द इंसाइजल गाइडेंस इज फैब्रिकेटेड इंडिविजुअली विद एक्राइलिक एंड कैन ट्रैवल इन अ पाथ ऑफ कॉन्डाइल यूजिंग पेंटोग्राफिक ट्रेसिंग्स कैन बी यूज्ड. फुली एडजस्टेबल आर्टिकुलेटर्स आपको यूज़ करने हैं. ये 4 स्टेटमेंट थी. गलत स्टेटमेंट क्या दी थी इन्होंने कि पाथ ऑफ कॉन्डाइल इन प्रोट्रूसिव एंड लेटरल मूवमेंट्स आर ऑन द स्ट्रेट लाइन. ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन पे था. ये स्ट्रेट लाइन में कभी हो ही नहीं सकता. इट्स ऑलवेज इन कर्व. एवरीथिंग इन द ह्यूमन बॉडी इज इन अ कर्व. एनीथिंग इन स्ट्रेट लाइन और विद एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विल लीड टू ब्रेकेज. ओके. नेक्स्ट, अ 65-year-old denture wearer has a tissue growth in the vestibular region. वेस्टिब्यूल में टिश्यू ग्रो कर गया. विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी परफॉर्म्ड इन द सीक्वेंस फॉर दिस पेशेंट. आप क्या करेंगे इस पेशेंट के लिए? फर्स्ट, यू डिसकंटिन्यू द डेंचर. जो भी डेंचर पहना हो उसको डिसकंटिन्यू कर दो. सर्जिकली रिमूव द टिश्यू एंड रीलाइन द डेंचर. ठीक है. उस टिश्यू को आप हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेज दो. पूरा कैप्सूल रिमूव कर देना उस टिश्यू का. ठीक है. उसके बाद यू विल गो फॉर सर्जिकल स्प्लिंट और डेंचर लाइंड विद सॉफ्ट टिश्यू कंडीशनर and is inserted and worn continuously for first 5 to 7 days. आप एक टिश्यू कंडीशनर दोगे. ठीक है. सॉफ्ट टिश्यू कंडीशनर दोगे जिसको आप डेंचर के ऊपर लगाओगे, जिसको आप कॉन्टीन्यूसली 5 से 7 दिन के लिए आप पहन के रखवाओगे अपने पुराने डेंचर को रीलाइन करने के बाद. उसके बाद आप नया डेंचर फैब्रिकेट करेंगे आफ्टर अ मंथ. Okay, new denture will be fabricated after a month. It's a case of denture irritational hyperplasia. That's a hyperplastic reaction of the mucosa occurring along the borders of the denture. These lesions result from trauma due to unstable dentures with thin denture flanges. Symptoms are very mild. Symptoms बहुत ज़्यादा mild होते हैं इन केसेस में. सिंगल होते हैं या फिर न्यूमरस lesions होते हैं showing flaps of hyperplastic connective tissue. Deep ulcerations दिखाई देती हैं. Assuring the inflammation may occur at the depth of sulcus. The lesions usually subside after surgical excision of the tissues and correction of the dentures. ये lesion जो है subside कर जाता है. Next, which of the following is not true about anterior and posterior determinants? देखो, not true है कि no correlation between the two, but there is a correlation between the anterior determinant and the posterior determinant. ठीक है. Anterior determinant can be changed by altering the vertical dimension.
True statement. Posterior determinant is not under operator's influence. True statement. ठीक है. Increasing horizontal overlap increases the horizontal movement. जितना horizontal overlap आप increase करोगे उतनी horizontal movement भी increase कर जाती है, उतना आपको mandible को बंद करना पड़ेगा. ठीक है. These are true statements about anterior and posterior determinant जो भी हमने बात की. ठीक है. The condyle moves out of the centriclation position. It descends across the articular eminence of the mandibular fossa. The rate at which it moves inferiorly as the mandible is being protruded depends upon the steepness of the articular eminence. If the surface of the eminence is very steep, in turn the condyle will describe a steep vertically inclined path and vice versa. Since the separation between the teeth can be increased, the cusp of the teeth can be steeper while still producing necessary disocclusion, which is desirable in the natural dentition. Thus, a steeper condylar path allows for steeper cuspal inclines on the teeth. जितना steeper condylar path होगा उतना ही steeper cuspal inclines हमारे पास होती है. The incisal path is a function of relationship between anterior teeth. Greater the vertical overlap, greater or steeper is the incisal path, resulting in steeper cuspal lines. When the horizontal overlap is increased, the mandible assumes a more horizontal pattern of movement, and the lesser is the guidance offered by the anterior teeth, resulting in the shallow cuspal anatomy. Next, if we have to alter anterior guidance in rehabilitation cases, which of the following procedures can be performed for altering the anterior guidance? Anterior guidance को alter करने के लिए आप reduce कर सकते हो lingual surface of maxillary teeth को. ठीक है. You can open the vertical dimension and you can reduce the incisal edges of the mandibular anteriors. इससे आप anterior guidance को change कर सकते हैं. ठीक है. Alter कर सकते हैं basically. Factors that control the anterior guidance are overjet, overbite, location and amount of contact, incisal level and the labiolingual curve. ठीक है. Next, all of the following statements about bruxism are true. Except what? Bruxism is the limitation of jaw movements. आपकी jaw movements uncontrolled हो रही हैं, रात को हो रही हैं, नींद में हो रही हैं, that is leading to bruxism. It will lead to oral and facial pain. Yes, it will lead to tooth atresion. ठीक है. और ज़रूरी नहीं है कि bruxism सिर्फ रात में हो. Bruxism can occur whenever you are in stress and subconsciously you will do bruxism. ठीक है. Bruxism आपका different types का हो सकता है. Can occur during daytime, that is diurnal, or awake bruxism can also occur. Bruxism during nighttime is known as sleep bruxism or nighttime bruxism. Awake bruxism is related to stress due to familiar responsibility, work, anger, frustration. Awake bruxism is most commonly seen in females as compared to males. ठीक है. The prevalence rate of awake bruxism is noted to be 20%, whereas sleep bruxism is considered as sleep-related oromandibular movement disorder. ठीक है. Next, all of the following factors are considered in crown lengthening, except what? Crown lengthening के लिए आप कौन से factors को consider करोगे? Smile line को consider करोगे of the anterior teeth. Width of attached gingiva बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. 2 से 3 मिलीमीटर मिनिमम आपकी width of attached gingiva रहनी चाहिए, नहीं तो वो हील नहीं करेगा. एंडोडोंटिक प्रोग्नोसिस भी आपको देखनी है इन क्राउन लेंथनिंग पोजीशन प्रोसीजर्स. ठीक है. नेक्स्ट, चौथा ऑप्शन इसने बोला है गलत जो ऑप्शन है, दैट इज लोकेशन ऑफ इंटरप्रॉक्सिमल कॉन्टैक्ट्स. इंटरप्रॉक्सिमल कॉन्टैक्ट्स की लोकेशन आपका इतना वो फैक्टर लिखा नहीं गया इसमें क्राउन लेंथनिंग प्रोसीजर में. ठीक है. नेक्स्ट, 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं, पेरिडोंटल फैक्टर होता है, रेस्टोरेटिव फैक्टर होते हैं. ठीक है, जिनके बेसिस पे आप क्राउन लेंथनिंग करवा सकते हो. नेक्स्ट, द क्वांटिटी ऑफ डॉक्सीसाइक्लिन इन सब एंटीमाइक्रोबियल डोज ऑफ डॉक्सीसाइक्लिन इज हाउ मच? सब एंटीमाइक्रोबियल डोज ऑफ डॉक्सीसाइक्लिन 20 मिलीग्राम आप डोज देते हो. ये बैक्टीरियाज को नहीं मारता है, लेकिन आपके जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस बॉडी के अंदर दिखना शुरू हुए उनको कम कर देता है. ठीक है. नेक्स्ट, ऑल आर फॉल्स अबाउट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस एक्सेप्ट व्हाट? देखो, necrotizing ulcerative gingivitis, it is common in children with Down syndrome. It is a true statement. It is common in children with Down syndrome. Necrotizing ulcerative gingivitis, it can occur in all the individuals of all the ages, with the highest incidence reported in the patients between 15 years of age and 30 years of age. Children with low socioeconomic status and underdeveloped countries like India, इसमें necrotizing ulcerative gingivitis आपको 54 to 58% of patients में देखा जाता है. ठीक है. Necrotizing ulcerative gingivitis is more common in children with Down syndrome.
ठीक है। और 10 साल से छोटे बच्चों के अंदर इंडिया में 54 से 58% के अंदर देखा जाता है। इट हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट अनग इज ट्रांसमिसेबल। एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस जो होता है वो ट्रांसमिसेबल तो होता है, बट हाउएवर इट इज़ नॉट कम्युनिकेबल और इट इज़ नॉट एज कंटेजियस। ओके, नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस में कोई पॉकेट फॉर्मेशन यूजुअली नहीं बनती है। It does not lead to pocket formation usually because the necrotic changes involving the gingiva and the junctional epithelium। ठीक है, नेक्रोटिक चेंजेस सिर्फ जिंजाइवा और जंक्शनल एपिथेलियम तक ही जा रहे हैं, इसीलिए नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस में पॉकेट फॉर्मेशन नहीं होती। हेल्दी एपिथेलियम इज नीडेड फॉर पेरियोडोंटल पॉकेट डीपनिंग। हेल्दी एपिथेलियम हमें पेरियोडोंटल पॉकेट की डीपनिंग के लिए चाहिए रहेगा। नेक्स्ट, रिस्क फैक्टर फॉर अनग इज व्हाट? एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस के लिए मेजर रिस्क फैक्टर जो होता है दैट इज मॉल न्यूट्रिशन। मॉल न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा फैक्टर होता है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से क्या होगा? इंक्रीज कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रोडक्शन हो जाएगी। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो इम्यूनोसप्रेशन हो जाएगा। इम्यूनोसप्रेशन होगा तो इम्यूनोसप्रेशन आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और डिबिलिटेटिंग डिजीज से और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इस सारे इम्यूनोसप्रेशन की वजह से आपका अनग बनता है और इससे इंक्रीज बैक्टीरियल ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाती है और बैक्टीरिया का इन्वेजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। स्मोकिंग से क्या होता है? स्मोकिंग से इंटर्न्स साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बनना शुरू हो जाता है। स्मोकिंग से इंटर्न्स प्री एग्जिस्टिंग जिंजिवाइटिस जो है वो और ज़्यादा इन्फ्लेम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा सलाइवा जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो जिंजिवाइटिस विल प्रोलिफरेट, जिससे कि इंक्रीज बैक्टीरियल ग्रोथ और इन्वेजन होता है और ग्रोथ का, और फाइनली इट विल लीड टू अनग। ठीक है। ऑल ऑफ द predisposing factors for necrotizing ulcerative gingivitis and they are associated with immunosuppression। ठीक है, सारी चीज़ें इम्यूनोसप्रेशन के साथ लिंक्ड होती हैं। तो रिस्क फैक्टर फॉर अनग इज मॉल न्यूट्रिशन। ठीक है, ना ही अनग के लिए प्रेगनेंसी रिस्क फैक्टर होता है, ना ही प्यूबर्टी होता है, ना ही एंटी हाइपरटेंसिव होता है। ठीक है, बट मॉल न्यूट्रिशन इट इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर अनग, that is acute necrotizing ulcerative gingivitis। Next, pocket in which the lateral wall of the pocket is present between tooth and bone is known as what? ऐसी पॉकेट जिसमें lateral wall of the pocket it is present between the tooth and the alveolar bone, it is known as intrabony pocket। क्या बोलते हैं इसको? Intrabony pocket। Next, not a clinical indicator for trauma from occlusion is what? Trauma from occlusion में आपके पास एट्रीजन देखा जाएगा, Framingham टेस्ट will be positive, टूथ मोबिलिटी भी हो सकती है ट्रॉमा फ्रॉम ओक्लूजन में, लेकिन इंक्रीज विड्थ ऑफ पीडियल स्पेस विल नॉट बी सीन। ठीक है, इंक्रीज विड्थ ऑफ पीडियल स्पेस इज सीन इन TFO, हाउएवर इट कैन ओनली बी अप्रिशिएटेड ऑन द रेडियोग्राफ, हेंस इट इज़ नॉट अ क्लिनिकल इंडिकेटर। ये क्लिनिकल इंडिकेटर नहीं है, इट इज़ अ रेडियोग्राफिक डायग्नोस्टिक एड जो आपका इंक्रीज विड्थ ऑफ पीडियल स्पेस है। ठीक है, देखा जाएगा लेकिन इन द रेडियोग्राफ, बाकी सारी चीज़ें आप क्लिनिकली देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी दिमाग चलाना है। नेक्स्ट, CPP एंड ACP इज व्हाट? CPP होता है केजीन फॉस्फोपेप्टाइड कैल्शियम फॉस्फेट, केजीन फॉस्फोपेप्टाइड कैल्शियम फॉस्फेट, और इट इज़ बेस्ड अपॉन रीमिनरलाइजेशन सिस्टम। ठीक है, now CPP ACP is casein phosphopeptide, that is CPP, and ACP is amorphous calcium phosphate. It is a milk product which helps in remineralization and prevents dental caries. Casein phosphopeptide can deliver amorphous calcium phosphate and can also help the ACP to bind with the dental enamel. Casein phosphopeptide can also decrease the count of Streptococcus mutans as it has got the ability to integrate in the pellicle। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में केजीन फॉस्फोपेप्टाइड फॉर्म्स नैनो क्लस्टर्स विद अमॉर्फस कैल्शियम फॉस्फेट, thus providing a pool of calcium and phosphate which can maintain the super saturation of saliva। दोनों CPP और ACP it can stabilize the calcium and phosphate in the solution। It can also help in buffering the action of plaque pH, and so calcium and phosphate level in the plaque is increased। Therefore the calcium and phosphate concentration within the subsurface lesions is kept high, which result in remineralization of the tooth। Next, out of the following, which instruments are used in reduction of maxillary fractures? Maxillary fractures के लिए आप उनको reduce करने के लिए you use Hayton-Williams forceps, Hayton's-Williams forceps and Rouse disinfection forceps। ठीक है, Hayton-Williams forceps यूज़ करोगे और Rouse disinfection forceps यूज़ करोगे। Walsham forceps, that's the reduction of the lateral nasal wall in the nasal complex। It is a set of two
फोर्सेप्स, राइट एंड लेफ्ट। एश फोर्सेप आते हैं उसके बाद। एश फोर्सेप आप यूज़ करते हो टू रिड्यूस द रेजर सेप्टम एंड इट इज बीक एंड गैप बिटवीन द बीक्स, ठीक है। देख लो इसको, एक है हमारे पास एश सेप्टम फोर्सेप, ऊपर वाला एश सेप्टम फोर्सेप है, नीचे वाला हमारा दूसरे वाला है, ठीक है, ठीक है। नीचे वाला इज वॉलहैम सेप्टम फोर्सेप, ऊपर वाला एकदम बीक की तरह जा रहा है, नीचे वाला देखो एकदम खुला खुला जा रहा है, ठीक है, वो सेप्टम की तरह दिख रहा है दूसरे वाला, ठीक है। नेक्स्ट द एरलिक आर्च बार, EAB, इट इज द आईलेट वायरिंग विद द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन और प्रायर टू द कंसेप्शन ऑफ ORIF, ओरल रिडक्शन, ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन से पहले हम एरलिच आर्च बार यूज़ करते हैं। ऐसी सी दिखती है, एकदम आईलेट वायरिंग जैसी दिखाई देगी, लेकिन एकदम ऐसी दिखाई देगी, ठीक है, ठीक है। इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन के लिए यूज़ करते हैं बिफोर ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। ये अपनी हमारे पास वायर आ जाती है जो भी हम यूज़ कर रहे होते हैं फिक्सेशन के लिए, ठीक है। एंड लास्ट में वी हैव फॉर रिडक्शन, जिसमें हम रॉयस डिसइम्पैक्शन फोर्सेप यूज़ करते हैं और हेटन विलियम डिसइम्पैक्शन फोर्सेप यूज़ करते हैं। रॉयस डिसइम्पैक्शन फोर्सेप ये ऊपर वाले हैं, दिस इज रॉयस डिसइम्पैक्शन फोर्सेप एंड दिस इज हेटन विलियम डिसइम्पैक्शन फोर्सेप। ये जो नीचे वाला है दिस इज हेटन विलियम डिसइम्पैक्शन फोर्सेप, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिजॉर्बेबल सूचर। रिजॉर्बेबल कौन कौन से हैं? पॉलीग्लाइकोलिक एसिड इज रिजॉर्बेबल, पॉलीडाइऑक्सिनोन इज रिजॉर्बेबल, पॉलीग्लिप्टेकैपरॉन इज रिजॉर्बेबल, ठीक है। बट नॉन रिजॉर्बेबल इज पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर नॉन रिजॉर्बेबल होता है। नेक्स्ट, मार्क बैंड इफेक्ट इज सीन ड्यू टू व्हाट? Mach band, MACH band effect is seen due to optical illusion of the dental caries due to sharply defined density difference between enamel and dentine, ठीक है। Mach band or Mach effect, it refers to an optical phenomena named after Ernest Mach 1865 from edge enhancement due to lateral inhibition of retina. This is an inbuilt edge enhancement mechanism of the retina where the edges of the darker object next to lighter object will appear lighter and vice versa, creating a false shadow, ठीक है। Along the boundary between the adjacent shades of gray in the Mach band illusion, the lateral inhibition makes the darker area falsely appear even darker and the lighter area falsely appear even lighter, ठीक है। ये हमारे रेटिना का ही एक इनबिल्ट सेटिंग होती है, हमारी रेटिना में ही इनबिल्ट सेटिंग होती है कि जब हम लाइटर एरिया के साथ डार्कर एरिया को प्लेस करते हैं तो उसके बीच में हमें डिस्टिंक्ट मार्किंग दिखाई देती है कि हमें कि ये चीज़ जो है वो लाइट है, ये चीज़ डार्क है, अगर हम साथ साथ प्लेस कर दें तो, ठीक है। एकदम दूर दूर प्लेस करेंगे तो हो सकता है हमारी आंखें धक्का खा जाए, लेकिन जब साथ में प्लेस कर देंगे तो उन दोनों के बीच में हमारे कोई आंखों को डिफरेंस दिखना शुरू हो जाता है। दैट इज नोन एज एन ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ द डेंटल कैरीज ड्यू टू शार्पली डिफाइंड डेंसिटी बिटवीन इनामल एंड डेंटिन, उसको बोलते हैं मार्क बैंड इफेक्ट, ओके। नेक्स्ट, सॉफ्ट एक्सरेज विद 2.4 वेवलेंथ are known as what? They are known as Gran's rays, ठीक है। Soft X-rays with 2.4 wavelength, they are known as Gran's rays. X-rays are usually described by their maximum energy, which is determined by voltage control between the electrodes. X-rays with high photon energies above 5 to 10 kilowatts are called as hard X-rays, and while those with having the lower energy and the longer wavelength are called soft X-rays. जिसकी wavelength ज़्यादा होगी और फ्रीक्वेंसी कम होगी वो सॉफ्ट एक्सरे बोलेंगे, जिसकी वेवलेंथ कम होगी और उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी दैट विल बी नोन एज हार्ड एक्सरे, ठीक है। और 4 तरह की हमारे पास एक्सरेज आती हैं, दैट इज़ 4 टाइप्स ऑफ एक्सरेज वी हैव, ठीक है। फर्स्ट इज ग्रेन्स और सुपर सॉफ्ट एक्सरेज, दैट्स 1 to 2 Armstrong, मेनली यूज टू ट्रीट सुपरफिशियल लीजन। फिर आते हैं सॉफ्ट एक्सरेज, सॉफ्ट एक्सरेज इज 1 to 0.5 Armstrong यूज इन कॉन्टैक्ट थेरेपी। सॉफ्ट एक्सरेज जो होते हैं वो कॉन्टैक्ट थेरेपी में आपकी यूज़ की जाते हैं। फिर आते हैं मीडियम एक्सरेज, मीडियम एक्सरेज आर 0.5 to 1 Armstrong, मेनली यूज इन डायग्नोस्टिक एंड सुपरफिशियल थेरेपी। फिर हार्ड एक्सरेज होते हैं वो 0.1 Armstrong से ज़्यादा चलते हैं, दे आर मेनली यूज फॉर डीपर एक्सरे थेरेपी, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर? तो उसका आंसर है म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा, ठीक है। 33% जितने म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा होते हैं वो पैराइटल ग्लैंड के अंदर अकर करते हैं। एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा इज द कॉमनेस्ट ग्लैंड कैंसर इन द सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड के अंदर और माइनर सलाइवरी ग्लैंड के अंदर एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट कैंसर होता है, जो कि 42 to 49% सारे केसेस बनाता है, ठीक है, ऑफ द सबमैंडिबुलर और माइनर सलाइवरी ग्लैंड।
लेकिन जो पैरोटिड का हमारे पास सबसे कॉमन है, दैट इज म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा। प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा इज द कॉमनेस्ट सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर, mostly affecting the parotid. It is benign but it has the potential to turn malignant. ठीक है, प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा भी होता है मगर उसका वो यूजुअली बेनाइन होता है, एंड इट हैज़ अ पोटेंशियल टू टर्न मैलिग्नेंट। और सबसे ज़्यादा कॉमन मैलिग्नेंट जो होता है दैट इज म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट्स द बोन रिजॉर्प्शन? तो आंसर इज ऑस्टियोप्रोटियोग्रिन, इट विल इनहिबिट द बोन रिजॉर्प्शन, ओपीजी बोलते हैं इसको। कैल्सिटोनिन भी इनहिबिट करता है बोन की रिजॉर्प्शन को। इट इंटरैक्ट्स डायरेक्टली विद द ऑस्टियोक्लास्ट बाय सेल सरफेस रिसेप्टर्स, और इनहिबिट करेगा बोन के रिजॉर्प्शन को। ईस्ट्रोजन भी बोन की रिजॉर्प्शन को इनहिबिट करता है। इट एक्ट्स बाय डिक्रीज इन द रैंकल RA and KL, सिमुलेटिंग द बोन प्रोडक्शन दैट इज बाय द एनाबॉलिक पाथवे, एंड प्रिवेंट्स रिजॉर्प्शन, मतलब वो एडिशन ऑफ द बोन करवाता है और रिजॉर्प्शन को कम करवाता है। इट इनहिबिट्स द एक्टिवेशन ऑफ एडेनाइल साइक्लेज। लास्ट में ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर TGF बीटा फैक्टर जो होता है वो भी बोन रिजॉर्प्शन को इनहिबिट करवाता है। ठीक है, मतलब बोन की प्रोडक्शन या बोन की जो लेवल्स है उनको मेंटेन करके रखवा रहा है। फिर आता है इंटरल्यूकिन 10। इंटरल्यूकिन 10 सप्रेस द ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी एंड दस विल इनहिबिट द बोन रिजॉर्प्शन। ठीक है, उसके बाद अब बोन रिजॉर्प्शन करते कौन कौन से उनके बारे में बात करते हैं। मॉलिक्यूल दैट स्टिमुलेट द बोन रिजॉर्प्शन। रैंकल एक लिगेंड होता है दैट इज सिक्रेटेड बाय ऑस्टियोब्लास्ट एंड इट बाइंड टू रैंक रिसेप्टर ऑफ द ऑस्टियोक्लास्ट प्रिकर्सर ऑफ द मैच्योर ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स, जिससे ऑस्टियोक्लास्टिक सेल की एक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। ऑस्टियोक्लास्ट इंक्रीज कर जाएगा, बोन की रिजॉर्प्शन इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट, पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है उसकी एक्टिवेशन इट स्टिमुलेट्स एडेनाइल साइक्लेज। एडेनाइल साइक्लेज इंक्रीज करेगी, दोबारा ऑस्टियोक्लास्ट पे एक्टिविटी होगी, ऑस्टियोक्लास्ट इंक्रीज, पैराथायरॉयड हार्मोन से बोन की रिजॉर्प्शन इंक्रीज। इंटरल्यूकिन 1 ये ऑस्टियोक्लास्ट की डिफरेंशिएशन और बोन रिजॉर्प्शन को इंक्रीज करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट 1,25 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन दैट इज स्टिमुलेट्स इट रैंकल एक्सप्रेशन। जो 1,25 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन है वो रैंकल की एक्सप्रेशन को स्टिमुलेट करता है और उसकी वजह से बोन रिजॉर्प्शन होती है। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एक्टिवेट्स एडेनाइल साइक्लेज एंड स्टिमुलेट्स द बोन रिजॉर्प्शन। ठीक है, और लास्ट में इंटरल्यूकिन 6 की बात आती है, ये भी बोन की रिजॉर्प्शन को इंक्रीज करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा इंटरल्यूकिन था जो नहीं करवा रहा था? इंटरल्यूकिन 10। ठीक है, इंटरल्यूकिन 10 TGF बीटा, एस्ट्रोजन, कैल्सिटोनिन और ऑस्टियोप्रोटियोग्रिन ये सारे बोन की रिजॉर्प्शन को इनहिबिट करवा रहे थे, मतलब बोन को रिजॉर्व नहीं होने दे रहे थे। ठीक है, और बाकी जो हमने बात की वो बोन को रिजॉर्व करवा रहे थे। नेक्स्ट, स्लफ्ट नेक्रोटिक एपिथेलियम कैन बी सीन इन व्हाट? स्लफ्ट नेक्रोटिक एपिथेलियम वो एस्पिरिन बर्न्स के अंदर देखा जाता है। इन 4 ऑप्शन के अंदर 4 ऑप्शन दिए, एस्पिरिन बर्न, टोमेटिक अल्सर, SLE, सोरियासिस। स्लफ्ट नेक्रोटिक एपिथेलियम कैन बी सीन इन एस्पिरिन बर्न्स। ठीक है, एस्पिरिन हाईली एसिडिक ड्रग है जो इसका pH 3.5 to 5.0 के बीच में रेंज करता है। Hence it result in coagulative necrosis of the mucosa which looks like a mucosal burn that is called as a aspirin burn। ठीक है, chemically induced oral ulceration can affect any oral mucosal site, but mostly the site सबसे ज़्यादा affected होती है that are labial mucosa and buccal mucosa where the patient commonly place the medication। Clinical findings include a dull continuous pain with burning sensation, there is erythema and edema of the oral mucosa and gingiva which leads to formation of white slough that is pseudomembrane covering the underlying ulceration. It is seen in aspirin burns. Next, which of the following is a candidate for host modulation therapy? Host modulation therapy में हम periodontitis stage 3 grade C होस्ट मॉड्यूलेशन थेरेपी में हम ये वाला कैंडिडेट चूज करते हैं। होस्ट मॉड्यूलेशन थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटिंग द होस्ट साइड ऑफ द होस्ट बैक्टीरिया इंटरेक्शन। हम होस्ट की साइड को ट्रीट कर रहे हैं बाय ट्रीटिंग द होस्ट बैक्टीरिया इंटरेक्शन। द मोस्ट कॉमन होस्ट रिस्पॉन्स that is responsible for most of the tissue breakdown that occurs and leads to the clinical signs of periodontitis, that is loss of connective tissue attachment in the bone, उसको हम modify करते हैं। ठीक है, जो ये टिश्यू जो डिस्ट्रक्शन हो रही है वो हम नहीं होने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, होस्ट मॉड्यूलेशन थेरेपी इज अ की टू एड्रेस मेनी ऑफ द रिस्क फैक्टर्स दैट हैव एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द होस्ट रिस्पॉन्स दैट आर नॉट इजीली मैनेज्ड, जैसे स्मोकिंग हो गया, डायबिटीज़ हो गया, या फिर कोई भी चीज़ जो हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी होगी। पेशेंट्स मोस्ट लाइकली टू रिक्वायर द यूज ऑफ होस्ट मॉड्यूलेशन थेरेपी, ठीक है, इंक्लूड दोज विद द रिस्क फैक्टर्स दैट आर नॉन मॉडिफाइबल एंड हेंस नॉट ईजिली मॉडिफाइड, जैसे कि स्मोकिंग वगैरह हो गया या फिर कुछ की जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी। होस्ट मॉड्यूलेशन थेरेपी कैन एनहांस द एफिकेसी ऑफ existing medical procedures or mechanical procedures that contribute favorably and integrated approach for long-term clinical management of periodontitis, particularly for susceptible high-risk patients.
किसके लिए करते हैं? ससेप्टेबल हाई रिस्क पेशेंट के लिए हम होस्ट मॉड्यूलेशन थेरेपी करते हैं। फ्रॉम अबव जितना भी हमने पढ़ा है, वी कैन डिराइव दैट पेरियोडोंटाइटिस स्टेज 3, जहाँ पे हमारा जो क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मिलीमीटर, और जो बोनी लेंथ है हमारी वो भी एक्सटेंड कर रही है, जो बोनी डेहिसेंस हो चुकी है या फिर बोनी जो हमारी रिजॉर्प्शन हो चुकी है वो भी एक्सटेंड कर रही है टू द मिडल थर्ड and beyond the grade C, where the destruction exceeds even the biofilm deposits, will be an ideal candidate for HMT, host modulation therapy. Next, laser used for osseous resection in periodontal surgery is which laser? Osseous resection के लिए आप ERCRYSGG लेज़र यूज़ करोगे, ERCRYAGG या फिर YAG लेज़र आप यूज़ करोगे, ठीक है। It uses an erbium chromium doped yttrium scandium gallium garnet medium, yttrium scandium gallium garnet medium, ठीक है, और ये अर्बियम और क्रोमियम के साथ डोप्ड होती है। इट इज सिमिलर टू ERYAG लेजर इन टिश्यू पेनिट्रेशन, वेरी शैलो होती है, मतलब इन दोनों में ERYAG और ERCRYAG में हमारी जो टिश्यू पेनिट्रेशन होती है बहुत ज़्यादा शैलो होती है, दैट इज फ्रॉम 1 to several microns in size, ठीक है। द वेवलेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स आर मोस्टली हाईली एब्जॉर्ब बाय द वाटर एंड द हाइड्रोक्सीएप्टाइड। इसमें क्या आता है कि अपना जो वेवलेंथ है, एनर्जी है, वो ज़्यादातर वाटर वाले हिस्से जो है वो अब्जॉर्ब करते हैं। Hence the ERYAG laser is effective for both soft tissues and hard tissues. वाटर वाले हिस्से अब्जॉर्व कर रहे हैं, उसके साथ साथ हाइड्रोक्सीएपेटाइट भी अब्जॉर्व करता है। सो फॉर ऑसियस रिसेक्शन इन पेरियोडोंटल सर्जरी वी यूज ERCRYAG लेजर, ठीक है। नेक्स्ट, किसिंग टॉन्सिल्स आर सीन इन व्हाट? किसिंग टॉन्सिल्स आर सीन इन लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया। लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया में किसिंग टॉन्सिल्स दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्ड टिश्यू लेजर यूज इन डेंटिस्ट्री? हार्ड टिश्यू लेजर कौन सी है? ERYAG जो है वो हार्ड टिश्यू लेजर है, ठीक है। ERYAG इज अ हार्ड टिश्यू लेजर। हमारे पास डेंटल लेजर्स दो तरीके में क्लासिफाई की जाते हैं, या तो सर्जिकल होगी या नॉन सर्जिकल होगी। सर्जिकल में भी अगर आपका सॉफ्ट टिश्यू काट रही है या हार्ड टिश्यू काट रही है, सॉफ्ट टिश्यू काट रही है तो उसमें आएगा डायोड लेजर आ जाएगी, NDYAG आएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड लेजर आएगी, NDYAG एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेजर फॉर सॉफ्ट टिश्यूज। फिर आती है हार्ड टिश्यू लेजर्स, इसमें आती है ERYAG, ERYSGG और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। YAG और YSGG और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हार्ड टिश्यू लेजर्स हैं। फिर आती बात नॉन सर्जिकल लेजर्स की। नॉन सर्जिकल लेजर आप कहाँ यूज़ करोगे? आप होस्ट को मॉड्यूलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लो लेवल लेजर थेरेपी देने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर आती है डायग्नोस्टिक एग्जाम्पल का, वो डायग्नोडेंट आ जाती है, लेजर डॉपलर फ्लोमेट्री, और मिसलेनियस लेजर्स में हमारे पास PAD हो जाती है एंड लेजर बेस्ड क्योरिंग लाइट्स आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डैश यूजेस एन ऑल्टरनेटिंग करंट इम्पीडेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इन्वॉल्व्स द पासिंग ऑफ एन इनसेंसिटिव लेवल ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू द टूथ टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ लोकेशन ऑफ डीके। आप एक बहुत ही इनसेंसिटिव लेवल ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट दांत के थ्रू पास करवा रहे हैं, ठीक है, और उससे आप डीके को पता लगा रहे हैं। तो चार ऑप्शन दिए, डायग्नोडेंट, FOTI, केरी स्कैन, QLF। तो इनमें से केरी स्कैन डिवाइस है हमारा जो इसके लिए यूज़ किया जाता है। केरी स्कैन, दिस डिवाइस इज बेस्ड अपॉन द अल्टरनेटिंग करंट इम्पीडेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इन्वॉल्व्स द पासिंग ऑफ इनसेंसिटिव लेवल ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। इनसेंसिटिव लेवल ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट पास करेंगे थ्रू द टूथ टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ द डीके। इट इज द फर्स्ट डेंटल डायग्नोस्टिक टूल टू बी यूज्ड for impedance spectroscopy to quantify the dental caries early enough to enhance the preventive treatment. Caries scan is not affected by optical factors जैसे कि staining, discoloration of the tooth. It provides a qualitative value based upon the disease state rather than the optical properties of the tooth. ठीक है, बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आती है बात डायग्नोडेंट की। डायग्नोडेंट एक लेजर डायोड है, वो जनरेट करता है पल्स्ड 655 नैनोमीटर लेजर। ये आंसर नहीं है, बाकी ऑप्शंस। पल्स 655 नैनोमीटर की लेजर बीम जनरेट करता है थ्रू अ सेंट्रल फाइबर विच इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द टिप ऑफ द डिवाइस इनटू द टूथ, ठीक है। टिप ऑफ द डिवाइस से हम टूथ के ऊपर लगाते हैं। व्हेन द इंसिडेंट लाइट इंटरैक्ट्स विद द सब्सटेंस इट स्टिमुलेट्स फ्लोरेसेंट और ल्यूमिनेसेंट लाइट एट लॉन्गर वेवलेंथ्स। डायग्नोडेंट में ये सब हो रहा है। द इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ डीमिनरलाइजेशन और बैक्टीरियल कॉन्सेंट्रेशन इन द प्रोब्ड रीजन। कितनी फ्लोरेसेंस आएगी, वो हम कितनी डीमिनरलाइजेशन हुई है या कितना बैक्टीरियल कंसंट्रेशन है जिस रीजन पे हम प्रूव कर रहे हैं, उसकी बेसिस पे जो आपकी फ्लोरेसेंस है वो आपको बता देगी कि ये केरीस है या नहीं है केरीस। नेक्स्ट इज QLF, दैट इज क्वांटिटेटिव लाइट इंड्यूस्ड फ्लोरेसेंस। इट यूजेस नेचुरल फ्लोरेसेंस ऑफ द टीथ एंड डिपेंड्स अपॉन द लाइट अब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द टीथ।
टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन केरीज एंड सराउंडिंग साउंड इनेमल। इसमें हम एक ही चीज़ करते हैं, हम टूथ को ड्राई करते हैं, ठीक है। जब ड्राई करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाती है बहुत ज़्यादा दांत की, तो जब वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी तो आप इजीली डायग्नोस कर पाएंगे कि कौन सा रीजन केरियस है, कौन सा नहीं है, ठीक है। द ऑटोफ्लोरेसेंस ऑफ द टिश्यू decreases with the demineralization and the QLF measures the percentage of fluorescence change in the demineralized enamel with respect to surrounding sound of मतलब सराउंडिंग साउंड इनेमल के हिसाब से वो डीमिनरलाइज इनेमल की जो शेड है उसको अलग करवा देता है, ठीक है। इतना ही काम करता है। इट रिलेट्स टू द अमाउंट ऑफ मिनरल लॉस ड्यूरिंग डीमिनरलाइजेशन। QLF में मिनरल लॉस ड्यूरिंग डीमिनरलाइजेशन आप चेक करते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इमेजिंग टेक्निक्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर दे कॉज, मतलब कितना रेडिएशन एक्सपोजर कॉज कर रहे हैं उसके बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में करवाना है। सबसे ज़्यादा होता है CT का, CT स्कैन में सबसे ज़्यादा रेडिएशन एक्सपोजर होता है। फिर आती है बात CBCT की, CT से कम CBCT में हमारे पास रेडिएशन एक्सपोजर। फिर आती है बात TACT की, ठीक है। और लास्ट में सबसे कम इनमें से जो एक्सपोजर होता है दैट इज एन OPG। द मेजर एडवांटेजेस ऑफ TACT over CT is that it is considerably lower effective radiation dose to which the patients are exposed. Radiation dose of one cone becomes computed tomography, that is CBT CT scan. It may be little as 3 to 20% of that to conventional CT scan. मतलब पूरे CT में अगर 100% हमारी एनर्जी यूज़ हो रही है, ठीक है, तो उसका 3 से 20% CBCT के अंदर यूज़ होता है और उससे भी कम TACT के अंदर यूज़ होता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द area and equipment that is being used. The overall radiation dose of TACT is not greater than 1 to 2 times that of the conventional periapical X-ray film. जितना हमारा IUPR निकालते हैं हम, ठीक है, उसका जितना रेडिएशन डोज होता है उससे ट्वाइस 1 to 2 टाइम्स ही हमारा TACT का डोज रहता है। TACT मीन्स ट्रीटमेंट एडाप्टिव CT। ये CT जैसा होता है लेकिन उसमें क्या होता है कि डाटा सेट पहले ही CT से उठा लिया होता है या फिर CBCT से डाटा सेट उठा लिया होता है कि कितना रीजन हमारा एक्सपोज हुआ है, कितने में हमारी दिक्कत है, कितने में नहीं। तो वहाँ पे ट्रीटमेंट एडाप्टिव CT हम करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारी जो रेडिएशन है वो कम रहती है। इट इज़ अ वेंडर एंड प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी एंड इज सीन इन एडेप्टिव वर्क फ्लोज। एग्जाम्पल वेरियन एथोस स्टाइल सिस्टम के अंदर देखा जाता है, ठीक है। इसमें एनाटॉमिकल साइट यूज़ होती है, बल्क डेंसिटी यूज़ की जाती है और पुराने डेटा के बेस पे यूज़ की जाती है और टॉलरेंस के बेस पे आपकी CT की जो आपकी लिमिट है, जो आपकी रेडिएशन की लिमिट है वो दी जा रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर ही है। डैश इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ टोमोसिंथेसिस एंड ऑप्टिकल अपर्चर थ्योरी एंड ट्रांसफॉर्म द कोरिलेटेड 2-dimensional images into 3-dimensional display and was developed by Weber et al. It is TACT. Tuned Aperture Computed Tomography or TACT. It's a relatively new technique that transforms correlated 2-dimensional images into 3-dimensional display. Tuned Aperture Computed Tomography, it is relatively simple, faster method for reconstructing tomographic images which was developed by Weber and his colleagues. It was based upon the concept of tomosynthesis and optical aperture theory. TACT uses 2D periapical radiographs acquired from different projection angles and has base images and permits the retrospective generation of longitudinal tomographic slices, that is THCTS, lining up in z-axis of the area of interest. It produces a true 3D from any number of arbitrary oriented 2D projections. The overall radiation dose of TACT is not greater than 1 to 2 times that of the conventional X-ray film. The resolution is stated to be similar to 2D radiographs, and the artifacts associated with the CT, such as the starburst pattern seen with the metallic restorations, do not exist with TACT. CBCT में क्या होता है कि imaging technique है that is based on cone-based X-ray detector. It performs one rotation around the object and produces a series of 2D images that are reconstructed using 3D. Using the modification of the original cone beam algorithm developed by Abudara et al. In 1984, major advantage of TACT over CT is that it has a considerably lower effective radiation dose which the patients are exposed to. Radiation dose of one cone beam computed tomography can be as little as 3 to 20% of that of the conventional CT scan depending upon the equipment that is being used and the area that is being scanned. Alright. Next. Now, हम दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, assertion and reason. FOTI is used for caries detection and it utilizes light emitting diode. FOTI हम यूज़ करते हैं for caries detection, ये सही स्टेटमेंट है. रीज़न दिया है, FOTI is based upon the fact that caries enamel has higher index of light transmission than sound enamel. तो ये जो रीज़न है वो फॉल्स है.
ठीक है। FOTA का मतलब होता है फाइबर ऑप्टिक ट्रांस इल्यूमिनेशन दैट यूटिलाइजेज अ लाइट एमिटिंग डायोड एंड वाज डेवलप्ड फॉर कैरीज डिटेक्शन व्हिच यूजेस अ नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट टू ट्रांस इल्यूमिनेट द टूथ। FOTA as a caries detected technique. It is based upon the fact that caries enamel has lower index of light transmission than the sound enamel. लोअर इंडेक्स ऑफ लाइट ट्रांसमिशन होता है कैरियस इनामल का देन साउंड इनामल, इसीलिए वो डार्कर दिखाई देता है। ओके, नाउ एज द डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस डिसरप्ट्स द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ द इनामल, द डेंटिन, the more light is absorbed due to the changes in the light scattering and absorption of the light photons. In essence of this gives an area of more darkened appearance. Next, Luxa-Temp is what है? Luxa-Temp क्या चीज़ है? Luxa-Temp is for making provisional crowns. Luxa-Temp, it is due to its high surface hardness. Luxa-Temp, it is extremely abrasion resistant and maintains the vertical relation. At the same time, it is easily to cut and polish. With its high fracture resistant Luxa-Temp, it is extremely tough and therefore well suited for long term temporary or provisional हमारे जो crown देते हैं। ठीक है। Next, what are true about Ceramir crown and bridge? Ceramir crown and bridge में उसमें कैल्शियम एल्यूमिनेट यूज किया जाता है, दैट इज प्लस GiC यूज किया जाता है। इट इज अ बायोएक्टिव मटेरियल, इट हैज अ बेसिक pH। Ceramir, ठीक है। गलत स्टेटमेंट क्या है कि रेजिन सीमेंट यूज करते हैं, इसमें रेजिन सीमेंट यूज नहीं करते, इसमें हम GiC यूज करते हैं। Ceramir is crown and bridge is an acid base reaction cement that constitutes a para-diagram shift from resin based and resin modified glass ionomer cement and adhesive resin cements। ठीक है, मतलब एक शिफ्ट है बेसिकली रेजिन बेस्ड और रेजिन मॉडिफाइड GiC से एडहेसिव रेजिन सीमेंट की तरफ। ठीक है। Ceramir C and B is not a resin cement, yet it is having a physical properties that are equal to or exceed the aforementioned cement। ठीक है, Ceramir C और B उतना नहीं, रेजिन सीमेंट से भी ज़्यादा कई केसेस में ये अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहा होता है। Ceramir C and B is water based hybrid composition comprised of calcium aluminate and glass ionomer components GiC that are mixed with the liquid. The setting mechanism of Ceramir C and B is a combination of a glass ionomer reaction and an acid base reaction of the type occurring in hydraulic cements, मतलब जो पानी के साथ या फिर जो लिक्विड के साथ मिक्स करते हैं। इट इज़ हैविंग अ बेसिक प्रॉपर्टी विच इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू बायोकम्पैटिबिलिटी एंड प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीरिक्विजिट्स फॉर द मटेरियल टू बी बायोएक्टिव, that's creating a hydroxy apatite on the surface when in contact with the phosphate containing solutions. The material also produces excess of calcium ions which also contribute to bioactivity and to possible remineralization of the surrounding tooth structure। ठीक है। Now मोस्ट सिग्निफिकेंटली ये इनामल और डेंटिन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो टूथ स्ट्रक्चर बनाना की रीमिनरलाइजेशन करने की कोशिश करता है। ठीक है। नेक्स्ट, डेंसाबर्स, ये हमारे पास एक डेंसाबर के ब्रांड की हम इमेज दे रखी है। डेंसाबर्स किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं? डेंसाबर्स आर यूज्ड फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ ऑसियस डेंसिफिकेशन। ठीक है, ऑसियस डेंसिफिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। इट इज़ अ न्यू मेथड ऑफ बायोमैकेनिकल बोन प्रिपरेशन BMPs परफॉर्म्ड फॉर डेंटल इम्प्लांट प्लेसमेंट। ऑसियो डेंसिफिकेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है डेंसाबर्स। ठीक है, DENSAH। द प्रोसीजर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ लो plastic deformation of the bone that is created by rolling and sliding contact using densifying burr and that is fluted such as it densifies the bone with minimal heat elevation। जो हमारी हम कर रहे हैं यहाँ पे डेंसिफिकेशन, ऑसियस डेंसिफिकेशन, it is a bone non extraction technique was developed by Hui's in 2013 and was done using specially designed burrs that are known as Densaha burrs that help to densify bones they prepare an osteotomy। ठीक है, मतलब पहले हम डेंसिफिकेशन करेंगे बोन्स की, फिर उसके बाद वहाँ पे ऑस्टियोटोमी की एक साइड बना लेंगे। These burrs provide advantage of both osteotomes, combining the speed along with the improved tactile control of the drills during osteotomy procedures। Standard drills excavate bone during implant osteotomy। Standard drills होती है वो excavate करती है bone को during implant osteotomy, while osteotomes tend to induce fractures of the trabeculae that require long remodeling time and delayed secondary implant stability। The Densaha burrs use or allow for the bone preservation and condensation through compaction autografting during osteotomy procedures, thereby increasing the bone density in the peri-implant areas and improving the implant mechanical stability। Next, which of the following wavelength of laser is employed for tooth bleaching? कौन सी आप लेजर की वेवलेंथ यूज करते हो फॉर टूथ ब्लीचिंग टेक्निक? आंसर इज 488 to 514 नैनोमीटर आप यूज करोगे फॉर टूथ ब्लीचिंग। 488 to 514 नैनोमीटर। नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट शोन बिलो इज यूज फॉर व्हाट? देखो,
इंस्ट्रूमेंट आपको PRP बॉक्स दे रखा है यहाँ पे, PRF बॉक्स, ठीक है, जो आप एक मेम्ब्रेन जैसी बनाने के लिए यूज़ करते हो, ठीक है. इट इज़ PRF बॉक्स, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग प्लेटलेट रिच फाइब्रिन. ओके, व्हाट इज इट्स यूज फॉर मेकिंग? इट्स यूज फॉर मेकिंग प्लेटलेट रिच फाइब्रिन, जो मेम्ब्रेन बनाते हो आप फॉर वेरियस रीजनरेटिव सर्जरीज, आप इसमें यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट, द इमेज शोन बिलो shows apical negative pressure irrigation system that is called as what? देखो, इसमें आप apical negative pressure irrigation system दिखा रखा है, 4 इंस्ट्रूमेंट दिखा रखे हैं, ठीक है. What is it? It is EndoVac, ठीक है, EndoVac बोलते हैं इसको. EndoVac is a suctioning device allows predictable irrigation and working length and drawing the fluids from the excess preparation through the root canal system into the microcannula. माइक्रो कैनुला से है ये, रूट कैनाल सिस्टम से जो जितना भी हमारा फ्लूइड है उसको पिकअप कर लेता है. एंडोवैक ओवरकम्स द फिजिकल कंस्ट्रेंट्स विच नॉर्मली लिमिट द फ्लो ऑफ इरिगेंट टू वर्किंग बाय लेंथ. देखो, नॉर्मली जब हम पुश करते हैं, पिस्टन को पुश करते हैं, तो इरिगेंट अंदर जाता है, बाहर निकलता है. जो इरिगेंट अंदर है, कभी कभार वो अंदर ही पुश रह जाता है, लेकिन एंडोवैक सिस्टम से ये बाईपास हो जाता है, उससे हम डायरेक्टली सकअप कर ले रहे हैं थ्रू द माइक्रो कैनुला. एंडोवैक सिस्टम इज बेस्ड अपॉन नेगेटिव प्रेशर अप्रोच whereby the irrigant is placed into the pulp chamber and then sucked down the root canal and back up again with a thin needle that is designed for this use. ठीक है, इसमें हमारे पास एक मास्टर डिलीवरी टिप होती है, माइक्रो कैनुला होता है और मैक्रो कैनुला होता है. मास्टर डिलीवरी टिप, माइक्रो कैनुला एंड मैक्रो कैनुला, ठीक है. इसके अलावा वी हैव एंडोवैक सेटअप. इसमें माइक्रो कैनुला ऐसा सा दिखेगा ऊपर, ये सक करने के लिए, उसके नीचे एक मोटर लगी हुई है हमारी, ठीक है, दैट इज़ मल्टी पोर्ट अडेप्टर. उसके बाद हाई सक्शन वॉल्यूम हमारे उसके साथ कनेक्ट की हुई है और मास्टर डिलीवरी टिप MDT सक्शन टिप उसके साथ लगी होती है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट प्रोब आई कैमरा इज यूज फॉर व्हाट? सॉरी, ह्यूग प्रोब आई कैमरा इज यूज फॉर व्हाट? HUGHES प्रोब आई कैमरा, इट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ पल्प वाइटैलिटी. ह्यूग probe eye camera, it can detect temperature changes as small as 0.10 Celsius. 0.10 सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज भी डिटेक्ट कर लेता है. इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मेजर द पल्प वाइटैलिटी बाय मेजरिंग द ब्लड फ्लो इन द पल्प. इट कंसिस्ट ऑफ थर्मल वीडियो सिस्टम with silicon close-up lens with resolvable spot size of 0.023 इंच. मतलब ये 0.023 इंच के स्पॉट को भी डिटेक्ट कर लेगा, उसमें भी कितना टेम्परेचर चेंज कितनी जल्दी हो रहा है, पल्प वाइटैलिटी को चेक करने के लिए वो डिटेक्ट कर लेगा ये, क्योंकि जहाँ पे इन्फ्लेम्ड पल्प होगा वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है. नेक्स्ट, मैच द एपेक्स लोकेटर विद इट्स ऑपरेशन मोड. हमारे पास डिफरेंट जनरेशन दे रखी है और उसके एपेक्स लोकेटर को उसकी जनरेशन मोड के साथ मैच करना है. द फर्स्ट जनरेशन इज बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. पहली जनरेशन जो एपेक्स लोकेटर की थी वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड थी. सेकेंड जनरेशन वॉज बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस. फर्स्ट जनरेशन वॉज बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, सेकेंड जनरेशन ऑन इम्पिडेंस. पहले रेजिस्ट करेगा फिर हम इम्पिडेंस पे आ गए, ठीक है. थर्ड जनरेशन जो थी दैट मेजर्स 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एट सेम टाइम. थर्ड जनरेशन में हम इम्पिडेंस रेजिस्टेंस और मतलब 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हम सेम टाइम पे मेजर कर रहे होते थे. फिर बात आई हमारी फिफ्थ जनरेशन की. फिफ्थ जनरेशन इट मेजर्स द कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट सेपरेटली. कैपेसिटेंस अलग मेजर करेगी, रेजिस्टेंस अलग मेजर करेगी एक ही सर्किट की सेपरेटली एक ही टाइम पे, ठीक है. दिस इज डिफरेंट जो भी हमने एपेक्स लोकेटर के बारे में बात की. नेक्स्ट हमारे पास एक इमेज दे रखी है, ठीक है. एक लॉन्ग सी टिप दिखाई दे रही होगी आपको, उसके पीछे एक मेटल का हिस्सा लगा हुआ है, दैट इज प्रोब जैसा कुछ लगा हुआ है. डैश इज मेड अप ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स एंड uses a rod lens endoscope for visualization in the oral cavity. Rod lens endoscope use कर रहे हैं यहाँ पे for visualization in the oral cavity. It is used in visualization in conventional and surgical endodontic treatments. So what is it? It is oroscope. That is a flexible fiber optic oroscope. It is recommended for intracanal visualization and has 0.8 millimeter tip diameter, 0 degree lens होता है इसके अंदर, and a working portion that is 15 millimeter in length. The term oroscopy describes the use of either rigid rod lens endoscope or the flexible oroscope in the oral cavity. The difference between endoscope and oroscope is that an oroscope is made up of fiber optics and an endoscope is made up of glass rods. क्या difference होता है? Oroscope fiber optics से बना होता है और endoscope glass rod से बना होता है. इसलिए अगर endoscope गिर जाएगा तो वो टूट जाएगा, oroscope के chances टूटने के कम रहते हैं.
All right. Next, both the oroscope and the endoscope works on the principle of conjunction with the camera. कैमरा होता है, लाइट सोर्स होता है, मॉनिटर होता है. इन द पास्ट द फाइबर ऑप्टिक इमेजिंग प्रोवाइडर superior ergonomics but suffered from poor image quality. Today, a unique lens design and a combined with digital image processing system in a camera allows fiber optics to be par with the image quality of the endoscope. Fiber optics are made up of glass or plastic. The advantages of fiber optics in endodontics are significantly small. They are small, lightweight. देखो fiber optics का क्या advantage रहेगा? Small है, lightweight है, very flexible है. The image quality from fiber optic usage has a direct correlation to the number of fibers and the size of the lens that is used in the oroscope. कितने आपके फाइबर्स हैं फाइबर ऑप्टिक के और कितना आप क्वालिटी ऑफ लेंस यूज़ कर रहे हो, उसी के बेसिस पे आपका ओरोस्कोप में इमेज की रेजोल्यूशन आती है. द ओरोस्कोप हैज़ 10,000 पैरेलल विजुअल फाइबर्स. ईच विजुअल फाइबर इज इन डायमीटर ऑफ 3.7 to 5 micron in diameter. The ring of much larger transmitting fibers surround the visual fibers of illumination for treatment field. Clinicians who use oroscopic technology appreciate the fact that it is not fixed field of focus, which allows visualization of the treatments and field at various angles and distances without losing focus you can achieve in the same field of treatment. ठीक है, क्योंकि आपका एक सिंगल ग्लास पिक नहीं कर रहा है इमेज को, मल्टीपल फाइबर्स पिक कर रहे हैं, तो हर एक जगह का आपको एक रेजोल्यूशन जो है वो अच्छी तरह से मिलेगा. ठीक है, ये फायदा रहता है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ इंट्रानेजल स्प्रेज is effective as an alternative to injected local anesthetic for patient undergoing invasive restorative dental procedures in maxillary, anterior canine and premolars. कह रहे कि आपने इंजेक्शन नहीं देना है, आपने इंट्रानेजल स्प्रे देनी है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली इक्विवेलेंट या फिर उससे बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस कर देगा फॉर द सेम एनेस्थीसिया फॉर मैक्सिलरी एंटीरियर्स, कैनाइन्स एंड प्रीमोलर्स? आंसर इज मिक्सचर ऑफ 3% टेट्राकेन एंड हाइड्रोक्लोराइड, tetracaine hydrochloride and 0.05% oxymetazolane. एक सॉल्ट है अपने पास जो कि टेट्राकेन हाइड्रोक्लोराइड है, उसका 3% का मिक्सचर एंड 0.05% ऑक्सीमेटाजोलिन उसका मिक्सचर वो यूज़ किया जाता है. ठीक है, इंट्रानेजल स्प्रेज दीज आर मिक्सचर ऑफ 3% टेट्राकेन हाइड्रोक्लोराइड एंड 0.05% ऑक्सीमेटाजोलिन, दैट इज कोवानाजे. A meter device is used for infiltrating anesthetic solution through the nostrils to anesthetize the maxillary anterior tooth, canines, and premolars. Tetracaine hydrochloride is an ester. It is a local anesthetic. Oxymetazoline hydrochloride is a vasoconstrictor. Oxymetazoline hydrochloride वो एड्रेनालिन का काम कर रहा है, vasoconstriction. ठीक है, और टेट्राकेन हाइड्रोक्लोराइड हमारा जो है वो मेन एनेस्थेटिक है, दैट इज एस्टर बेस्ड लोकल एनेस्थेटिक. कोवानाजे TM ये ब्रांड नेम है, कोवानाजे, दैट इज KOVANAZE TM. It is indicated for regional anesthesia, performing a restorative procedure on a non-molar maxillary teeth in adults and children who weigh above 40 किलोग्राम. ठीक है, तो हम इसमें नाक में स्प्रे डालते हैं, इंट्रानेजल स्प्रे डालते हैं रादर देन इंजेक्टेबल्स. ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल एनेस्थीसिया डिलीवरी मेथड इज शोन इन द इमेज बिलो. देखो ये स्प्रे टाइप कुछ लग रहा है, देखने में गन जैसी है, स्प्रे टाइप लग रहा है. ठीक है, इट इज बेसिकली MEDHZ3. MEDHZ3 जो क्या बोलते हैं मैन इन ब्लैक वाली मूवी है, वैसा स्प्रे जेट लग रहा है देखने में. इट इज MEDHZ3. Jet mechanisms work by mechanism of mechanical energy that is used for releasing high pressure, thereby allowing the liquid medication to be pushed through a small orifice that permits thin column of fluid to be created that will allow deposition of anesthetic solution into the subcutaneous tissue. ठीक है, without the use of needle. Jet injections have advantage of very fast drug delivery, ठीक है, and absorption and less tissue damage and less pain, क्योंकि आप needle use नहीं कर रहे. These injections are based on the patients with needle phobia and apprehensive patients. Commonly used brands of jet injections are MEDHZ3 and SYRI Jet Mark II. सीरी जेट मार्क 2 एक ब्रांड है और MEDHZ3 एक ब्रांड है. MEDHZ3 जो था ये सिस्टम 2011 में डेवलप किया गया. इन दिस सिस्टम द मेडिकेशन इज डायरेक्टेड थ्रू अ स्मॉल ऑरिफिस दैट इज 7 times स्मॉलर दैन द निडल विद स्मॉलेस्ट डायमीटर. हमारी जो सबसे छोटी डायमीटर की निडल होती है उससे भी 7 times छोटा ये पैसेज बनाता है, MEDHZ3. ठीक है, नाउ its accuracy is unquestionable
and it delivers the anesthetic at a low pressure and does not compromise the immediate environment of the tissues, safety of the tissues, patient comfort and user compliance. ये कंपनी का बोलना है, ठीक है. Next, which of the following CC-LAD system of administering local anesthetic does not have foot control? फुट कंट्रोल किसके अंदर नहीं होगा? कंफर्ट कंट्रोल सिरिंज के अंदर फुट कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है. अब फुट कंट्रोल का मुझे मतलब नहीं पता. Computer controlled local anesthesia delivery systems enable the regulation of rate of flow of local anesthetic agent using computers and thereby minimizes the pain by delivering the anesthesia slowly and at a constant speed that is required. The first CC-LAD used was WAND system, WAND system, that was introduced in 1997, and some subsequent versions include WAND Plus, CompuDent, Comfort Control Syringe. Comfort Control Syringe हमारी 2001 में दी गई थी. It is another device that differs from WAND system in a way that it does not possess a foot control. Okay. यहाँ CC-LAD का मतलब होता है कंप्यूटर कंट्रोल लोकल एनेस्थेटिक डिलीवरी सिस्टम. फुट कंट्रोल का मतलब होता है कि आप फुट को यूज कर रहे हो, आप दोनों हाथों को फ्री रखा हुआ है, फुट को यूज कर रहे हो फॉर स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग द इंजेक्शन, टू रेगुलेट द फ्लो रेट ऑफ द इंजेक्शन एंड टू कीप बोथ द हैंड्स फ्री फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ द पेशेंट. ठीक है, वो आता है फुट कंट्रोल सिस्टम. लेकिन CC-LAD जो है दैट इज नॉट अ फुट कंट्रोल सिस्टम. ठीक है. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द अप्लायंस. आपको एक अप्लायंस दे रखा है, मैक्सिला मैंडिबल लगी हुई है एक साथ, और ये मतलब एक ही साथ पे अपना एक वाइट जैसा बना रहा है. व्हाट इज इट? इट इज अ मोनोब्लॉक सिस्टम. It is a monoblock system that's used commonly as a removable appliance. The most important advantage of the functional appliance is that they are independent of patient cooperation. Fixed appliances have been used in the patient with retrognathic mandibles for many years. तो monoblock दिया जाता है उसकी जगह. It's a lower removable functional treatment appliance that's used for skeletal class 2 due to mandibular deficiency. जहाँ पे SNB कम होता है, SNB angle is less, that's mandibular deficiency जहाँ पे है, वहाँ पे we will use this appliance monoblock. Skeletal class 2 के केसेस में mandibular deficiency, mandible पीछे, वहाँ पे हम देंगे इसको. Mode of action is forward positioning of the mandible, which will stress the muscles and accelerate the growth of mandibular body. Okay, तो component क्या क्या रहते हैं इसमें? लेबियल आर्च रहती है और एक्राइलिक फ्रेमवर्क रहता है. एक लेबियल आर्च रहती है पूरी, ठीक है, दांतों की पूरी आर्च रहेगी लेबियली, एंड उसके साथ एक एक्राइलिक फ्रेमवर्क रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रोसीजर दैट इज बीइंग डन. ठीक है, आपको एक सिंपल डेंचर के ऊपर इन्होंने एक पल्प टेस्टर लगा के दिखाया हुआ है और पूछा है कि व्हाट इज इट. ठीक है, इट इज़ बेसिकली इलेक्ट्रिक पल्प टेस्टिंग. ठीक है, वैसे तो कॉटन वगैरह लगा होता अगर ये किसी पेशेंट पे हो रहा होता. दिस वन ऑफ द मोस्ट इवेल्युएटेड टूल्स ऑफ द evaluation of the pulp vitality is the electric pulp tester. Electric pulp test measures the vitality of the dental pulp indirectly by sending a gradually increasing electric current through the tooth to stimulate a sensory response.